السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ جی فضل اللہ پاک دا جی. جی یہ مرزا کتنا پھیلا رہا ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں کچھ بولنا چاہتے ہیں آپ؟ کیا ہو گیا ہے سمجھ نہیں آئی. یہ جو آج کل فتنہ بنا ہوا ہے اس مرزا کے دیانی کا. مرزا قادیانی کا فتنہ بنا ہوا ہے. ہاں یہ جو فتنہ بنا رہا ہے کون؟ عوام کو پاگل کر رہا ہے، اس کا کیا علاج ہونا چاہیے؟ یا آپ نا تھوڑا سا مائک منہ سے دور کر کے پھر آرام سے سوال کریں، سمجھ نہیں آ رہی جی. بھائی یہ جو فتنہ پھیلا رہا ہے اپنا مائک پاکستان پہلے میں، اپنے منہ سے تھوڑا سا دور کریں. جی یاسر دور ہے. بھائی آپ کا مائک جو ہے نا آپ کے منہ کے بالکل قریب ہے، آواز جو ہے نا بہت زیادہ آپ کی نا پھٹ رہی ہے. جی میں نے میکرو لگی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایسے جی اب بولیں کون فتنہ پھیلا رہا ہے؟ یہ جو مرزا ہے. مرزے دو ہیں، ایک چھوٹا مرزا ہے ایک بڑا مرزا ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آج کل تو یہ جس کا فوٹو آپ نے لگایا ہوا یہی پھیلا رہا ہے. آپ مرزا جونیئر جیل میں کہیں نا. اچھا جی کیا ہوا ہے اس کو؟ یہ جو آج کل فتنے پھیلا رہا ہے ایسے ہاں علماء کے خلاف اور دوسرے یہ یہودی حدیث کے. ہے، جی یہودی ہے یہ بندہ، اچھا یہودی اس ہے، کے یہ بڑے. یہودی ہے. یہودی ہے جیسے مرزا سینئر یہودی تھا نا، اچھا جیسے مرزا سینئر غلام قادیانی کو یہودیوں نے کھڑا کیا تھا، ویسے ہی اس چھوٹے مرزے کو بھی یہودیوں نے کھڑا کیا. اچھا چلو صحیح ہو گیا. یہی اس کی اصلاح ہم نے آپ سے پوچھنی تھی. انہوں نے بولا یار یہ جی آج کل بڑا جو نا جی جی چھایا ہوا ہے اور بڑے لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں ادھر. ہاں اور بالکل ٹھیک ہے. اچھا اور کوئی جی سوال ہے تو جناب. کر لیں، نہیں تو پھر آپ نیچے بیٹھ جائیں. نہیں کوئی سوال نہیں، یہی تھا بس اس جی کے بارے بڑی میں کچھ. مہربانی. وہ یہ ہے کدھر کا جی؟ کوئی ان کا کوئی نہیں، کوئی سرزمین نہیں ہوتی اچھا فتنے کی، تو نہیں نا کوئی سرزمین ہوتی. بالکل جی. ایسے ہی. اچھا جی یہ بگ صاحب آئے ہیں. جی بگ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہو. میں تو اس جی کو جی جانتا نہیں ہوں، مگر آپ تھوڑا اس کا بارے میں ہم کو سمجھائیں یا کچھ پروف دے دیں، پھر بلے اس کے کس کے گانٹ بھی بارے میں؟ مارے، ہم تمہارے ساتھ میں ہیں. یہ جو ابھی اس کا تصویر لگا ہے شیطان کا، اس کے بارے میں تھوڑا ہم کو سمجھائیں، پھر ہم بھی سمجھ جائیں، پھر ہم اس کے پیچھے ہم بھی لگے رہیں گے نا. کوئی ایسا سمجھ میں نہیں تمہارا آئی کہ اس شیطان، کس شیطان کی بات کر ہاں رہے ہیں؟ یہ جو تم لوگوں نے اس کو اسرائیل کا جھنڈا لگا دیا اس کا ساتھ میں، ہاں ہاں اس کا کچھ پروف، کچھ چیز تو دکھا دیں تاکہ دیکھنے والے بھی دیکھ لیں. کس چیز اور کا جیسے پروف؟ ابھی یہی آپ بولتے ہو کہ یہ غلط ہے تو ہم بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے غلط ہے. آپ اس کے یعنی فالوور کچھ ہیں میرے بھائی؟ نہیں، میں نے اس کو جانتا ہوں نہ آپ کو جانتا ہوں، میں ویسے اچھا ایسے ہی اچھا آیا ہوں. چلو ٹھیک ہے. ایک بات ہے، اگر ایسے میں تمہارا بل پر ایک بھائی تمہارا تصویر اٹھائے اور آپ کو بولے کہ آپ کافر ہو تو بالکل ایسا نہیں ٹھیک ہو ہے. سکتا ہے. اچھا آپ کا کچھ نام پروف کیا ہونا ہے؟ چاہیے. میرا نام ہے بگ بوس. نہیں بگ بوس تو وہ گنڈوں کے نام ہوتے ہیں. آپ گنڈے؟ آپ جو بھی سمجھ لیں. اچھا 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 یعنی ٹک ٹاک کے گنڈے ہیں؟ نہیں میں ٹک ٹاک کا نہیں، میں آپ کو ادھر آیا ہوں بھائی جان. وہی نا ٹک آپ ٹاک. کچھ جی تو جی ویسے آپ گنڈوں کچھ سے تو ثبوت ہمارا دے کوئی دیں. لینا دینا نہیں میرے بھائی، ہم تو شریف لوگ ہیں. نہیں آپ عالم دین ہو تو کچھ پروف دے دیں تاکہ ہم بھی اس کے گانڈ میں گھس جائیں نا. ہاں وہ تو ٹھیک ہے. دیکھیں نہ ہی تو آپ اس کو دیکھنے جانتے ہیں، والوں آپ کو کہہ رہے تو ہیں نہ. بھائی سن بھی تو لینا، سن بھی لیتے ہوتے ہیں، بات کر لی نا آپ نے، اب سن بھی تو لیں. آپ کہہ رہے ہیں نہ ہی میں اس کو جانتا ہوں نہ ہی آپ کو جانتا ہوں، تو پھر مسئلہ کس چیز میں آ گیا بھائی؟ نہ ہی آپ اسے جانتے نہ ہی مجھے جانتے، تو پھر آپ کو تو کوئی مسئلہ نہیں نہ ہونا چاہیے تھا. کیا خیال ہے؟ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، مگر سوشل میڈیا میں سوشل میڈیا میں جب کوئی چیز آتا ہے تو وہ یہ ہے کہ سب آپ کو نا نیچے بیٹھ کے حق میرے بنتا ہے بھائی، کہ اس کے مجھے اوپر لگ رہا ہے سوال آپ کی کرے، اس کا گفتگو سے جواب کہ دے آپ دیں. پٹھان ہیں. تو خان صاحب آپ آرام سے نیچے بیٹھ کے سنیں اور آ جائیں گے اس کے ماننے والے، تو ان سے جب ڈیبیٹ ہوگی، مکالمہ ہوگا، تو آپ بھی سن لیجیے گا. یہ بات. جی شہباز صاحب تشریف لائیں. جی شہباز صاحب.
घूम रहे ने उस्ताद जी हाले शहबाज साहब घूमी जा रहे हैं जी जी नहीं शो हो गए ने नहीं मेरे को घूम रहा हाँ जी हूँ शो है हूँ शो जी शहबाज साहब हाँ जी शहबाज मांझी भाई बोलो वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है मौलवी साहब, सेहत भी ठीक है? बेहतरीन जनाब जी फरमाए। कोई बात करेंगे कि खामोश बैठने आए हैं? ये जो मिर्ज़ा साहब हैं, नहीं नहीं खामोश क्यों बैठेंगे, इनका जो मिर्ज़ा साहब का है, एक मुफ्ती गया था इनकी एकेडमी में, उधर भी ये भाग गए थे। ये बैठ के बात क्यों नहीं करते आप लोगों के साथ है? इनको इतना इल्म नहीं है? समझ नहीं आई। मुफ्ती साहब गए थे कहाँ? कौन से मुफ्ती साहब गए और कहाँ गए? इनकी एकेडमी में गए थे, हमने वो वीडियो देखी थी। ये उधर से भाग गए, मैंने उनको खुद बुलाया, वो उनका मेरे को नाम कौन नहीं से याद, मुफ्ती साहब लेकिन गए ये उधर से और भाग किन की गए। एकेडमी में गए? आप हमारा हवाई समुद्री बातें- शहर के जो हवाई बातें कर रहे हैं आप। मुफ्ती साहब गए इनकी नहीं एकेडमी नहीं में नहीं हवाई बातें हम क्यों करेंगे? हमारी समुद्री समुद्री शहर के चिश्ती, शहबाज भाई समुद्री के चिश्ती साहब गए थे, उनका मेरे को पूरा नाम नहीं आ रहा। बंदे सिग्नल बात सुनिए ज़रा। शहबाज भाई वो असल में मुफ्ती साहब ये कह रहे हैं कि आप थोड़ी सी तफसील से बात करें कि आप बात कर किसकी रहे हैं, किसकी एकेडमी की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी तफसील के साथ बताएं। उन्होंने ना आवाज़ लेट पहुंच रही है ये जो मिर्ज़ा के आपने तस्वीर, यार। कोई मिर्ज़ा सीनियर या मिर्ज़ा जूनियर का फॉलोअर आए यार, कमाल हो गई है। पहले तो मिर्ज़ा जूनियर जेल में बड़े रौला पांदा सी, मेरी पूरी दुनिया जी मैं पहुंच गया ते मेरे शागिर्द ते स्टूडेंट ते पता नहीं उत्ते समाना ते भी पहुंच गए थे। हुण ते कोई होंदा कोई नहीं पिया यार। की हो गया है भाई? उस्ताद मोहतरम दुकान बंद हो गई है चैनल मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब दी। उस्ताद मोहतरम वो बिलाल शाह चैनल है ना, हाँ। उसके ऊपर 12 घंटे के अंदर 150 व्यूज आए हैं। अच्छा 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 अच्छा। 12 ये राहत घंटे साहब में तशरीफ ले आए ने, राहत साहब तशरीफ लाए हैं, ये कुछ बताएंगे। जी जनाब। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी। मैं लेडीज हूँ, मैं आदमी नहीं हूँ, मैं लेडीज हूँ। कौन मर गए? भाई मैं लेडीज हूँ। लेडीज दा इत्थे नहीं है कोई कम बाजी, लेडीज दी बराड़ ते नहीं। अच्छा चलो जी आ जाओ भाई आ जाओ। मिर्ज़ा सीनियर जूनियर उन बाजियां नू ना भेजना शुरू कर दियो, खुद आओ भाई। अच्छा जी आ गए हैं जी, इफ्तिखार साहब आ गए जी। इफ्तिखार साहब हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। हाँ जी कुत्ते की तस्वीर लाई जे भैन चो दले दी, चंगा वाह, कीता वाह। जेड़ा हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तबलीग हो रही है ना तबलीग। ਇਹ ਬੜਾ ਭੌਂਕਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਸੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬਾਬੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭੌਂਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਦਾ। ਆਹੋ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਭੌਂਕਣਾ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਦਾ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਭੌਂਕਦਾ ਪਿਆ। अच्छा अच्छा इफ्तिखार साहब कोई सवाल है वे कर लो, नहीं तो फिर और कॉलर बड़े ने। ठीक है कि मैं पता इन्हें हुणे बयान भी दिता ना, रान दे बारे भी बयान दिता ना इन्हें आखिया। हाँ जी वही ना, मुसलमान ते हर एक दे बारे बोलदा है ना, मुसलमाना दी उन्हें कोई चीज चंगी लगदी हुई कोई नहीं। इन्हें आखिया जी रान दे हमला हो गया, रान को होया कुछ नहीं तेरी बाजी को लिया के देता है रान। हाँ जी हाँ जी। ये बड़ा कुत्ती दा पुत्र जे बड़ा हराम। अच्छा भाई कादियानियों सुनो, मर्ज़ियों सुनो भाई, मिर्ज़ा जूनियर जेलमी वाले तवज्जो नाल सुनो भाई। मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब दी पहले एक वीडियो वेख लिया जे, तो उस बाद फिर गल करने। जी औरतों को ये कहें कि हाँ मैं जवाब देता हूँ। औरतों से ये कहें कि इंशाल्लाह आपके लिए हर वो चीज़ होगी जो आप ख्वाहिश करें, जो कुरान हकीम में आया कि जन्नती के लिए हर वो शय है जो वो ख्वाहिश करेगा। अगर किसी औरत के लिए, या वो जवाब है जो गांधी साहब ने भी दिया, मैं देता हूँ जवाब।
अगर किसी औरत की ये ख्वाहिश है कि उसके लिए एक से ज्यादा मर्द हो या वो एक से ज्यादा उसको भी हूरें मिले, तो अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। हाँ जी, मिर्जा जूनियर जेलमी साहब फरमा रहे हैं कि अगर किसी मरज़ई की अम्मी को जन्नत के अंदर एक से ज़्यादा शोहर की ज़रूरत होगी और वो ख्वाहिश करेगी, अल्लाह ताला से मांगेगी अल्लाह ताला मुझे 10 अदद शोहर अता कर दे, तो अल्लाह ताला उस मर्ज़ैन को 10 शोहर दे देगा। यार ये शोर कहाँ से आ रहा है? कासिम तुम्हारी तरफ से यह लग रहा है। तो वो कह रहा है जी 10 शोहर मांगे, 20 मांगे, 30 मांगे, अनलिमिटेड मांगे, कोई टेंशन नहीं, अल्लाह ताला सब अता कर देगा। अब सवाल मर्ज़इयों से सिर्फ एक मासूमाना सवाल है कि अब मान लेते हैं 10 शोहर हैं जी, तो 11वां दुनिया वाला शोहर यानी तुहाडे अबू जी उत्थे जन्नत दे विच जाके इन्ने बड़े जदों शोहर हो गए एक तुहाडी मां दे, ते जे अगर अम्मी जान दा दिल कीता, बल्कि अबू जी दा, के अबू जी दा, दुनिया वाले अबू जी दा, वो तुहाडे अबू जी दा दिल कीता कि तुहाडी अम्मी जी नाल गेम पाए, ते उधरों जनाब वो 10 ते 10 वो भी शुरू हो जान, उन्हां दा भी दिल कर पे है। हुण ओह की सीन हासा आ गया यार, माजरत भाई, माजरत ना भाई ना, हंसना नहीं भाई, हंसना नहीं। अच्छा वो मतलब सीन की होएगा यार, ए बस एक मासूम ना सवाल है, बस नाराज नहीं होना बिल्कुल। वेखो ए तुहाडी शरीयत दा मसला है, शरीयत जहलमियत दा मसला है, ते नाराज बिल्कुल भी नहीं होना। ते बड़े सानू कुरान ते हदीस दे दलाइल दे के ना इंटरनेशनल नंबर हदीसां दे दस के ते इहदा जवाब देना जी। अच्छा जी, तशरीफ ले आए ने, कौन आए ने जनाब? अहमद मिनाज साहब जी। जी मिनहाज साहब जी, जनाब फरमाओ जनाब। हेलो भाई जी, कोई गल तो सुनाओ। उस्ताद जी उनका प्रोग्राम ही कोई नहीं है। नहीं कोई नहीं, कोई नहीं, किसी ने अगर मशवरा करना है अपनी वालदा नाल ते कर लो, कोई गल नहीं, मशवरा ज़रूरी है जी। जी तैयब साहब तशरीफ ले आए ने जी, तैयब साहब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी तैयब साहब। जनाब ठीक हो, खैरियत है? जी बड़ा बेहतरीन, फजल अल्लाह। जनाब ये बड़ा ज़बरदस्त किया हुआ है, लेकिन ये बेगैरत का जो आपने किया ना, ज़बरदस्त किया है, इसको अच्छी तरह से सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ जी जी, लेकिन बेशक ये बेगैरत, ये खुदा की कसम अगर हमारे सामने होता तो हम पता नहीं क्या फॉलो किया आपने, हमें फॉलो किया है? जी जी फॉलो किया है, मैं फॉलो जल्दी जल्दी फॉलो करें, साथ डबल टैप करें, ठीक है तैयब भाई? हाँ, मैं डबल टैप कर रहा है, मैं डबल टैप बिल्कुल ठीक है। नीचे बैठ के सुनिए, और कॉलर आएंगे उनसे जो है ना फिर सुनते हैं, बेशक बेशक कोई तबलीग होगी कोई। अच्छा उसामा रिजवी, अच्छा उसामा रिजवी आप कुछ कहें जी? जी जनाब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है साहब भाई? ठीक है उस्ताद मोहतरम, ये आपने अच्छा किया, इसको इसराइल का ये एजेंट है बहुत बड़ा, और ये नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है, इस हद तक ले जाता है कि वो इतने गुमराह हो गए हैं कि वो नौज़-बिल्लाह हदीस का भी इनकार कर देते हैं, कुरान मजीद का भी इनकार कर देते हैं। तो ये इस दौर का ये दज्जाल फितना है। तो हम हुकूमत पाकिस्तान से भी अपील करते हैं कि इसको लगाम डालें। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, ये एक सवाल तो मैंने कर दिया है, चलो जी अब अगला सवाल जो है ना वो मैं अब करने लगा हूँ, और वो सवाल है ये कि मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं वो ज़रा ये सुनिए। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, हाँ नहीं नहीं ये नहीं। अच्छा ये सुनिएगा भाई,
बड़े नेड़े नेड़े हो के भाई मर जाइयो, नेड़े नेड़े हो। Since 2006. मैं इसीलिए कहता हूँ मुझे इस्लाम की जो सबसे पसंदीदा चीज़ है ना, अकीदा तौहीद के बाद अकीदा तौहीद सबसे पसंद। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद। दूसरी चीज़ सेक्स डिसिप्लिन मुझे इस्लाम का सबसे ज़्यादा पसंद। जी, ये तौहीद के बाद सबसे बेहतरीन जो चीज़ है ना वो है सेक्स। तो किस किस मर्ज़ई को तौहीद के बाद सबसे बेहतरीन चीज़ सेक्स लगती है, वो जल्दी जल्दी आ जाए भाई, कॉल पे है वो भाई का। ये नए कॉलर आए हैं एक, काजी जी साहब जनाब। यहाँ बैठे हैं जी। क्या नाम है जी? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। काजी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। काजी। क्या हाल है जनाब, ठीक हो? जी शुक्र शुक्र जनाब जी। ये इस मिर्ज़ाई को कोई पूछे ये क्या कर रहा पाकिस्तान में, इसको निकाल के इसराइल क्यों नहीं भेज देते आप? हाँ हाँ, उनका गुलाम बन जाए, जाके उनके तलवे चाटे। ये इस्लाम के नाम पे थप्पा है बस, और कुछ नहीं है। बदतरीन दब्बा है, बदतरीन थप्पा है, इसको भेज दो इसराइल जाके मुशरिकीनो उनके तलवे बिदअतीनो, चाटे। क्या हाल है बिदअत वाले मुशरिकीनो? जी एक कोलस साहब तशरीफ लाए। कोलस साहब दा थोड़ा जिहा साह लिया जरा, एक ना मिर्जा जी दी वीडियो चलानी, उस तो बाद तुहाडे तरफ आने हैं जरा, एक मिनट जरा सुन लिया जी। मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी भी लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। अच्छा जी, कोरलस साहब, ये मिर्जा जूनियर जेलमी साहब फरमा रहे हैं कि बच्चियां जब आप लोगों की 10 साल की हो जाएं तो फौरी तौर पे सेक्स सिखाएं। तो आपने अपनी बाजी को जब 10 साल की हुई थी तो फौरी सेक्स सिखाया था कि नहीं सिखाया था? जी फरमाएं जनाब। या मैं तो आपके माँ के साथ सेक्स किया था, उसने मुझे सिखाया था। वो अच्छा। बहुत तजुर्बाकार औरत थी, मुशरिक भी थी। हाँ नहीं, ये आप तो गुस्सा ही खा गए यार। नहीं गुस्सा नहीं खाना। नहीं, गुस्सा तो आपका गए ना, आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया कि आपके माँ के पास बहुत तजुर्बा था, मैंने हासिल किया उससे। जी फरमाइए। अच्छा नहीं, दोबारा सुन ले, आप गुस्सा खा गए, दोबारा सुन ले जरा थोड़ा सा। नहीं, गुस्सा मैं क्यों खा गया? बाबे तो शही कोई नहीं है, अहले सुन्नत वाला वो जो मुशरिक बैठा है। अजय तो बिजलियां कड़कदियां ने पईयां, सुनते लवो चुप कर। मुझे पंजाबी वंजाबी नहीं आता, उर्दू में बात करो। लोगों को बुरी नहीं लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन। और वो जो इस्लाम के तरीके से कीले काटते हैं, केले काट। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट करें। अब ये देख लें, मिर्जा जूनियर जेलमी साहब फरमा रहे हैं कि जब कोरला साहब की बातचीत माइक बंद ना करे ना, जाली मुफ्ती साहब माइक क्यों बंद कर रहे हो ना? बाजी जो है वो इनकी 10 साल की हो जाए तो फौरी तौर पे सेक्स सिखाना है। तुम्हारी बाजिया तो उधर वो पीर खानों में जाके क्या क्या करते हैं पता है? यार दे लो, मिर्जा जूनियर जेलमी साहब कह रहे हैं, अब मैंने तो नहीं कहा। वो तुम्हारी बाजी जब पीर के पास जाती है उधर क्या करती है पता है आपको कभी? नहीं, वो देखो वो तो जब आप वो तो वीडियो जब दिखाएंगे तो फिर है। वो मैं तो मदरसों में क्या क्या करते हैं आप लोग? कभी कब्रों से तवाफ करते हैं, कभी मुर्दों से मांगते हो क्या? यार गुस्सा मेरी बात सुनो, हम मुर्दों से नहीं यार। एक मिनट भाई, एक मिनट ठहर जाओ। देखो मैं तो सबूत दे रहा हूँ, इसका जवाब तो दो कम से कम। अब आप गालियां निकालेंगे, अब आप तड़पेंगे तो इससे तो कुछ भी नहीं बनना। अब ये देखो वो आगे क्या कह रहे हैं कि भी मेरा माइक बंद कर रहे हो भाई। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो खैर लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले एजुकेट कर दें। हाँ वो देख ले, वो कह रहे हैं पहले ही उनको ना स्कूल जाने से पहले आपने एजुकेट करना है और सेक्स उनको सिखाना है।
और दो पैड। अच्छा तो माइक बंद ना करे, मैं जवाब देता हूँ ना। दो यार एक मिनट सवाल तो सुन ले यार, की हो खान। तो दो पैड ना कोरला साहब ने अपनी बाजी के बैग के अंदर रख के ना उनको स्कूले भेजना है। एक पैड जो है ना मुफ्ती है ये बेंचो ये मुफ्ती है इसकी। यार सुनते सही ना यार, की हो गया सवाल तो सुन ले यार। तेरे कौन क्या औलाद यार एक मिनट सुनते ले यार खान, एक मिनट सुनते ले। तो एक पैड जो ना अगे रखने वास्ते तो एक पिछे रखने वास्ते। तो ये है कि आपने भी अपनी बाजी के बैग के अंदर दो पैड रखे थे कि तू नहीं माइक रखे? बंद ना करना, तेरी माँ को नंगा नचाऊं, माइक क्यों बंद करते हो बड़वे। अच्छा चल थल्ले बैठ के चस ले अगले अगे तेरी बाजी नाल की होया वे सुन की कहंदे पिया। कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना, चारी बच्चियों को। हाँ उनको बाजी को ये भी कहना परेशान नहीं होना, परेशान तो होना ही नहीं, बिल्कुल नहीं होना परेशान, समझ आई कि नहीं। अच्छा जी ये आए हैं जनाब AAR साहब तशरीफ लाए हैं जी। AAR साहब जनाब। भाई माइक ओपन आप ना करो यार, माइक ओपन करो। हेलो AAR साहब, परेशान नहीं होना। हेलो जी हेलो। हाँ जी मौलाना साहब सुनाओ, क्या हाल है, ठीक हो? बड़ा फजल है जनाब, आप सुनाओ खैरियत है? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक। जी जनाब, जी जनाब फरमाइए। ठीक है मौलवी साहब, थोड़ी मैं भैन नूं लड़ देना आ। सही है। अच्छा तो बाजी ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਾਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਤੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਸਾਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਲਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ ਨਾ ਸੈਕਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਫੌਰੀ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾਓ, ਬਸ ਨਿਬੇੜੋ ਕੰਮ ਭਾਈ, ਨਿਬੇੜੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੈਕਸ ਸਿਖਾ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਟੋਰੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਦੋ ਪੈਡ ਰੱਖਣੇ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਹਾਂ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ, ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਟੁਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਬਰਕ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। आंदो जी। कौन तो शरीफ ले आए ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब। यार ये बंदा जिसकी आपने तस्वीर लगाई, ये बंदा कहता है कि बावे थे कुछ ही नहीं थे, मेरे नबीजा है कोई नहीं, इस वजह से आप इससे इख्तिलाफ करते हो? नहीं हम इस वजह से इख्तलाफ कर रहे हैं कि ये मर्जियों को ये तबलीग कर रहा है कि मर्जियों की बाजियाँ जब 10 साल की हो जाएं तो फौरी तौर पे सेक्स सिखाएं। हम कह रहे हैं कि नहीं इतनी ज्यादती ना करे, फौरी ना करया करो, तो ठहर के सेक्स सिखा लिया करो। अगर शादी करो तो बीवी के साथ तुम करो ना, बच्चे ना पैदा हो, तो ये तो फिर सुन्नत ही नहीं तुम पूरी कर रहे हो। नहीं हमारा दीन तो कुछ और कहता है ना, हमारे दीन की बात तो नहीं है, ये तो मर्जियों के दीन की बात है। आप मानते हैं ये मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के दीन को? नहीं मानते, फिर तो ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ 'ਚ दर्द नहीं होनी चाहिए। नहीं बात तो सुनो ना। अच्छा जी उसको कह रहे हो कि इसराइली एजेंट है, वो क्या लगता है इसराइली एजेंट है? नहीं ये तो पता नहीं क्या है। हेलो जी पता नहीं क्या है, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़, मैंने यही करना था आपको। हाँ ठीक हो। अच्छा भाई और कोई है कोई? आ जाओ भाई तबलीग करो भाई। जी तशरीफ़ लाए हैं जनाब। जी जनाब, जी भाई जी 57 साहब तशरीफ़ लाए हैं। यार कोई आंदे हो तो कोई गाल गूल ते कट के जाया करो, मर जाओ सखने हथी टुर जाते हो, कुछ तो करके जाओ, तुहाडे नाल ते चंगे हो। पहले मरदई जड़े आए ने वो चंगे सन, वो गालां ते एडी मोटी मोटी कट के गए ने। जी इंजीनियर साहब आ गए हैं जनाब, वो नफ्से नफीस तशरीफ़ ले आए हैं। जी जनाब। आई थिंक मैंने आपको सलाम दिया है। अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। जी जनाब। भाई कैसे हैं? ठीक है, बड़ा फजल है आप सुनाइए। भी अच्छी है, ठीक है आपकी, बाकी सारे भाई ठीक है। अच्छा भैया ठीक है, तो इतने बैठे हैं जनाब। जी फरमाओ। अल्लाह का मज़ीद करम हो।
अच्छा भाई, मैं पिछले आधे घंटे से बैठा आप लोगों की ब्रॉड पे, वैसे खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कभी टिकटॉक की ब्रॉड ओपन ही नहीं की, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता। बिल्कुल सही, वो मसरूफ है आप। टाइम था तो मैं स्क्रॉल कर रहा था ना, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, काम में इतना मसरूफ रहता हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल सही है, सही। स्क्रॉल कर रहा था तो आपकी ब्रॉड आ गई तो मैंने सुनना शुरू कर दी। ठीक है, मैं भी फॉलोअर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, कह के कहता हूँ इंजीनियर साहब का मानने वाला हूँ। बिल्कुल सही है। अच्छा आपका नाम क्या है मेरे भाई? मेरा नाम वाजिद अली है, आई एम फ्रॉम सऊदी वाजिद भाई, वाजिद भाई, नहीं वाजिद भाई एक मिनट यार, एक मिनट जरा आराम से कर लेते हैं ना यार। ये भज्जा दौड़ी, हाँ नहीं भज्जा दौड़ी नहीं यार, भज्जा दौड़ी नहीं आती सानू यार। वाजिद भाई क्या हो गया यार, भज्जा दौड़ी नहीं होती सानू, आराम से तसल्ली से ऐसा बात। अगर आपको जल्दी है चले जाए कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर बात करनी है तो आराम से करेंगे, कोई मतलब भज्जा दौड़ी किस चीज़। अच्छा ये अभी वीडियो एक मैंने चलाई थी, मिर्ज़ा जूनियर जेल में कहता है कि मरज़इयों की माँ जन्नत के अंदर सवाल जब अल्लाह से करेगी ना, वो जितने शोहरों का चाहेगी उसको वो शोहर मिल जाएंगे। क्या आप मानते हैं कि आपकी वालदा अगर तो फोत हो गई हैं या जब फोत होंगी तो और जब जन्नत जाएंगी तो उस वक़्त वो ख्वाहिश करेंगी अल्लाह से कि मुझे 10 शोहर दे दो, 20 दे दो, 50 दे दो, 100 शोहर दे दो, तो क्या उसको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भाई एक मासूमाना छोटा सा सवाल जी, अब आप बोल जी, आपका माइक म्यूट है, बोल। बशर भाई मेरी बात सुनो जी, ये मुआज़्ज़त तरीका नहीं है। जब मैं बोल रहा हूँ मुझे पहले मेरी बात कंप्लीट करने दें, उसके बाद अगर आप जल्दी में तो ब्रॉड बंद कर दें। अगर आपके पास नहीं, हमें तो कोई जल्दी नहीं है, हमने एक सवाल किया, आपसे जवाब दे दें। अगर आपको जवाब पता है तो ठीक है, नहीं पता तो आप बता दें जी मुझे जवाब नहीं आता। मुझे नहीं आता आपका ये जवाब नहीं आता, बस ठीक है, फिर आप ना खामोशी से बैठ के नीचे सुने, आपको जवाब आ जाएगा। आपको सवाल कर सकता हूँ? नहीं, सवाल पहले हमने एक किया तो वो उसका जवाब आपके पास है को नहीं, तो हम आपका सवाल क्यों सुने भाई? मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, ठीक भाई है? सारे नॉर्मल लो, एक मिनट, आप कह रहे हैं मैं उसका फॉलोवर हूँ, और मिर्जा जूनियर जेल में कहता है मेरे जो फॉलोवर हैं वो तो 100 आलिम के ऊपर भारी है एक मेरा फॉलोवर, तो आप कह रहे हैं मैं तो नॉर्मल आदमी। और नॉर्मल को नहीं, तुसी यो इल्मी किताबी सारा इलम दुनिया का तुहाडे विच आ गया है, समझ आई कि नहीं? बाबे बूबे तो शायद कोई नहीं, दुकानां तुसां सारे फिरकियां दियां बंद कीतियां, सारी दुनिया नूं मुशरक ते काफर तुसां बनाया, सारी दुनिया जहल हो गई है, सिर्फ एक तुसी बच गए हो साहबे इलम ते तुहाडा बाबा बच गए है। ते जवाब देवो ना हुण, ते मैं एक नॉर्मल है की हुंदा जी? इंज गप्पां नहीं मारनियां, इंज गप्पां नहीं भाई, सवाल नाले किसी साहबे इलम को करीदा है, असी ते तुहाडे नज़दीक जाहिल, साडियां ते दुकानां बंद कर दित्तियां, दा डैमेज हैज़ बीन डन कर दिते तुसां, ते तुसी किसे मुंह दे नाल साडे कोल कोई सवाल नहीं कर सकते। जी जनाब जवाब दें इसका। आपकी वालदा जन्नत में जब सवाल करेगी तो उसको शोहर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? जवाब दें, बोले, माइक म्यूट है, जवाब दें जवाब। यार मैं जवाब तब दूंगा, मैं आपको कह रहा हूँ अगर फॉर एग्जांपल मैं शाहरुख खान का फॉलोअर हूँ तो मैं अपना दीन का जो टॉपिक है या दीन पे सवाल करना हो तो शाहरुख खान से भी नहीं, शाहरुख का सवाल मैंने नहीं किया, मैंने जन्नत में करना चाहता हूँ, मैंने जन्नत में आपकी वालदा आपके नाम के साथ ख्वाहिश का जिक्र किया है कि अगर वो मेरे नाम के साथ मुफ्ती नहीं है, मैं सवाल करूंगा, आपका हक बनता है, आप मुसलमान हो। मुफ्ती यार मैं ये लास्ट दफा है आपका माइक म्यूट किया, लास्ट दफा, इसके बाद माइक नहीं म्यूट करूंगा बल्कि आपको नीचे उतारूंगा, ठीक है? देखिए हम ऐसे बंदे नहीं हैं, हम आपको पूरा मौका दे रहे हैं बात करने का, टू दी पॉइंट रहिए। आप कह रहे हैं मैं मिर्जा जूनियर जेलमी का फॉलोअर हूँ, ठीक है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मिर्जा जूनियर जेलमी ये कहता है कि देखो द डैमेज हैज़ बीन डन, फिरकों की दुकानें बंद, वो कहता है सब फिरके मैंने ख़त्म कर दिए हैं। वो किसी आलिम मुफ्ती किसी बाबे बुजुर्ग को मानते ही नहीं है। भाई ठीक है, ये आप लोगों का क़ीदा है, हमें कोई लड़ाई नहीं करनी है आपसे, आपका क़ीदा है, आपको मुबारक हो, लेकिन कम अज़ कम जो लोग आप कहते हैं उसके ऊपर पाबंद तो रहिए, पक्के तो रहिए। जब आप लोगों ने हमारे डैमेज हैज़ बीन डन कर दिए,
फिरकों की दुकानें बंद कर दी। किसी आलिम मुफ्ती को कुछ समझते नहीं आप लोग। शय ही को नहीं, वो भी शय ही को नहीं, अम्मी भी शय को नहीं, अब्बा भी शय को नहीं, मुफ्ती शय को नहीं, नबी शय को नहीं, कोई शय को नहीं। सिर्फ एक शय बच गई है, मिर्जा जूनियर जेल में या ਉਹਦੇ शागिर्द स्टूडेंट तुसी। तो भाई जवाब दे। अगर आपने जवाब देना है, अभी माइक आप ओपन करें, अगर आपके पास इस चीज़ का जवाब है तो दे दे, नहीं जवाब है तो बाय बाय जी। जवाब दें, माइक ओपन करें, ये आखिरी दफ़ा है जी। जवाब दें यार। इंजीनियर ही ठीक है, तुम लोग बड़े इसी तरह की तबलीग करोगे, ठीक है। दौड़ जाओ और आ जाओ भाई, कोई और मरज़ई आओ भाई, मरज़ई आओ, तबलीग करो, अपने दीन की तबलीग करो। हम तो कुछ भी नहीं, हम तो शाय ही कोई नहीं ना, हम तो शाय ही कोई जी। AM साहब तशरीफ़ लाए हैं जी जनाब। जी जनाब। उस्मान भाई ब्राड को आप मोटिवेट कर रहे हैं कि मैं करूं? AM साहब कौन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जलाली कुरैशी हूँ जी जनाब। फरमाइए, किधर तशरीफ़ लाए? जी हम तो आपको सुनने के लिए आए हैं। आज फ्रॉड देखी तो सवाल नहीं करना आपने? नहीं, हम तो उसकी प्लम्बर की जो है ना सही ठोगाई देखने के लिए आए हैं। मेरा भाई फिर नीचे बैठ के सुन लेना, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ कॉलर के लिए कि भाई कोई कॉलर आ जाए हैं। आप नीचे बैठ, ठीक है, बराड़ छोड़ देना, नीचे बैठ के सुन लें। अच्छा जी, ये एक नए कॉलर आए हैं जी जनाब। शट अप साहब। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम सलाम जी जनाब। भाई मैं तो खुद इसके ख़िलाफ़ हूँ, मिर्ज़ा इंजीनियर के। तो मेरा ना इधर दोस्त हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मैं इंग्लैंड से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, अच्छा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इसको सुनते हैं, और ये ना अगर रिकॉर्डिंग उनके मेरे दोस्तों के, वो यही कहते हैं कि ये ना इनको सही रास्ता दिखा रहा है, और क्या नाम है, सहाबा के ख़िलाफ़ है ये बंदा। तो ये सही है? तो आपका सवाल समझ नहीं आया कुछ। मैं कह रहा हूँ इसकी वजह से ना ये सहाबा कराम को गालियाँ भी देते हैं, और ये हज़रत मीर माविया को सरेआम गालियाँ देते हैं। हाँ जी, वो तो सबको पता है, और कोई बात होता है। बस मैंने यही पूछना था। तो ये क्या ये बंदा ऐसा है कि मैं तो सुनता नहीं हूँ इसको, बट मुझे इतना मैंने सुनाई बातों पे यकीन किया। मुझे लोग कहते हैं इसको सुनो तो ये आपको सही रास्ते पे लगाएगा, और ये सारा कुछ। तो मैं डबल माइंड हो जाता हूँ। ऐसा ये बंदा सही है, गलत है, या किस वजह से लोगों को गुमराह करता है, वो वजह बताएं मुझे। डबल माइंड हो जाते हैं आप? हाँ जी, कोई मुझे अब मेरे दोस्त हैं, वो कहते हैं तुम इसको सुनो और ये तुम्हें सही रास्ता बताएगा। जो पाकिस्तानी लोग आलम दीन है और इधर उधर हैं, वो सारे तुम्हें ऐसे झूठ और ये फरेबी बातें बताएंगे। अच्छा, किसी आलम दीन को कभी आपने सुना है? मैं तो वैसे कभी कभी ये वीडियोस देख लेता हूँ पीर अजमल रज़ा कादरी साहब की। किसकी? पीर अजमल रज़ा कादरी साहब की। तो पीर अजमल रज़ा कादरी से आपने कोई चीज़ नहीं सीखी? वो ऐसी कोई फ़िरका वारियत वाली उनका कभी बयान नहीं आया। नमाज पढ़ते हैं आप? हाँ जी, नमाज तो मैं रेगुलर पढ़ता हूँ। अभी आपने इंग्लैंड के अंदर कौन सी नमाज पढ़ी है? अभी 2 बजे हमारी जोहर की नमाज हुई है। 3 बज गए, 7:30। जोहर के कितने फ़र्ज होते हैं? जोहर के 4 होते हैं। पहली रकत कैसे पढ़ेंगे? पहले सुबहान सना पढ़ेंगे पहले, और फिर उसके बाद डायरेक्ट सनाई पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। वो हो तकबीर तहरीमा करके ही, वो तो कॉमन है ना, वो नमाज के फ़र्ज में आ जाती है। अच्छा, फिर आगे क्या करते हैं? फिर अलहम शरीफ पढ़ते हैं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के एक आयत। नहीं, तकबीर तहरीमा के बाद क्या क्या करना है? अल्लाह अकबर कह के सना पढ़नी है। हाथ किधर बांधने हैं? हाथ नाप से नीचे। अच्छा, फिर क्या पढ़ेंगे? सना पढ़ेंगे। सना, उसके बाद आउज़ुबिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, आगे? फिर अलहम शरीफ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे? और फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के एक आयत लाएंगे साथ में, जिनके मिला देंगे। ठीक है, आगे? फिर आगे रुकू में जाने से पहले अल्लाह अकबर करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आगे?
फिर उस आगे क्या होगा? आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है दोस्तों को? आ रही है शाह जी, आ रही है। ठीक जी। शटअप भाई, आप रुकू में पहुंचे हैं, रुकू में जाके क्या करना है? चले गए। रुकू च जाकर नाच जाना है शाह जी। नहीं कोई बात नहीं, कोई मैसेज ये देना है कि मेरे भाई अभी आप यहाँ रुकते तो मैंने आपसे पूछना था कि इस एक रकत के अंदर फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं और सुनन कितने हैं, सिर्फ़ एक रकत के अंदर। क्योंकि इन चीज़ों का पता नहीं होगा तो फिर उसका हुक्म भी नहीं पता होगा कि हुक्म ये है कि फ़र्ज़ नमाज का अगर छूट जाए तो नमाज बातिल हो जाती है, नमाज का अगर वाजिब कोई छूट जाए तो नमाज फासिद हो जाती है, नमाज की अगर सुन्नत कोई छूट जाए तो नमाज के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आता। अब फासिद और बातिल का एक फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बातिल जब नमाज हो जाती है तो नमाज सिरे से ख़त्म ही हो जाती है, वो दोबारा पढ़नी पड़ेगी। जब नमाज फासिद हो जाती है तो सजदा साहब करने से वो फसाद ख़त्म हो जाता है। जब सुन्नत कोई छूट जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सजदा साहब भी नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये कम अज़ कम ये उस वक़्त होगा कि जब फ़राइज़ पता हों। ये तो नहीं हो सकता कि बंदे को फ़राइज़ का इल्म नहीं था, उसने तो कोई फ़र्ज़ छोड़ा था तो बाद में सजदा साहब कर रहे। हालांकि उस बेवकूफ़ को पता होना चाहिए कि भाई तेरी नमाज बातिल हो चुकी है। सजदा साहब तो उस वक़्त करना था कि जब कोई वाजिब छूटता। अब कोई उससे सुन्नत छूट गई है तो वो सजदे साहब कर रहे, हालांकि यहाँ पे सजदा साहब बनता ही नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि ये पहले इब्तदाई चीज़ें आपको सीखनी चाहिए, ये सीखनी है, अपनी नमाजें दुरुस्त करें। ये चीज़ें आती नहीं हैं और इधर उधर की बड़ी बड़ी बातें और वो कोई समझ नहीं आती। समझ आई कि नहीं? कॉलर उठाएं भाई, कोई नया कॉलर। जी कौन आया जी? शानी साहब तशरीफ़ लाए हैं जी। शानी साहब वालेकुम सलाम जी। शानी साहब और ठीक ठाक हो? शुक्र है अल्लाह दा। आवाज़ थोड़ी कट रही है जी, फरमाओ जनाब। अच्छा जी मुफ्ती साहब, मैं ये पूछना ही करना कि मैं ना बंदे को पैसे ले की हो गया थे? ਇਹਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਪੈਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ ਸੀਗੇ ਉਧਾਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਸੀ, ਰਿਆਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਲ ਦਾ ਪਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪਵਾਉਂਦਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਵਾਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਲ ਚਾਹੀਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਓਮਾਨ ਮਸਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਹੀ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹ जी भाई, आओ भाई, कोई कॉलर चुको भाई, नवा कॉलर कोई इंजीनियर दा भी पूछ लो ना जरा कि वो भी। और रहन दो नहीं, चलो ठीक। इंज नहीं जेड़ा आके खुद उंगल करे ना ओनू करी दी, ओनू फिर हथ वहाई दा हुंदा है, बाजू वहाई दा, एवें नहीं किसी नूं छेड़ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? सब ठीक है? शुक्र अल्लाह जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और आबाद रखे।
مفتی مبشر صاحب اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا لگا کہ آپ ادھر دین کی گفتگو کر رہے ہیں اور سب کو راہ حق کے متعلق بتا رہے ہیں. بس دعا کیجیے گا فلسطین کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں. بات تو یہی ہے کہ جو غدار ہیں، جو امت کے اور دین اسلام کے غدار ہیں، ان پہ لعنت ایسی ہونی چاہیے، چاہے نیچے کوئی جتنی مرضی بکواس کرے، گالیاں دے، جو مرضی کرے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمک کھایا ہے اور ہماری، کیونکہ ان کے صدقے ہر چیز ہمیں ملی ہے، تو ان پہ ہماری جان، مال، اولاد، حتیٰ کہ ہر وہ چیز قربان جو ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہماری جان سے بڑھ کر. تو اس لیے یہ جو غدار اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے والے ہیں، ان کو کل قیامت والے دن بھی ایسی سزا ملے گی کہ یہ بھول نہیں پائیں گے، اور اس دنیا میں بھی یہ ایسے ذلیل و خوار ہوں گے بالکل ٹھیک انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور یہ بیٹا تصویر آپ نے اپنی لگائی ہے؟ نہیں، ہاں، کوئی فیک پکچر ہے؟ جی فیک. ہاں وہ اور یہ بات تھی کہ استغفر اللہ، میں نا کل ادھر ویڈیو دیکھ رہا تھا تو بس اس ویڈیو سے مجھے یاد آیا. اور آج وہ وقت ہے کہ پرفتن دور ہے. اس دور میں ہر وہ بندہ اپنے آپ کو مفتی سمجھتا ہے اور ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا ٹھیکیدار ہوں، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم دین علماء کرام میرے علم کے وارث ہیں، ٹھیک ہے. اور آج کل ہر کوئی بندہ، ہر ایک بندہ عالم دین پہ بھی بکواس کرتا ہے، ٹھیک ہے. خاص کر کے علماء اہل سنت جو ہمارے تاج ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ بکواس کرتے ہیں. ان کو اتنا نہیں پتہ کہ یہ ہی دین کے محافظ ہیں اور انہوں نے ہی دین کو ہمارے تک پہنچایا ہے. یہ ٹھیک ہو گیا، کوئی فلم بھائی آپ کا پیغام ہو گیا جی. ابھی اذان ہو رہی ہے، جزاک اللہ خیرہ. اگر ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ، تھینک یو. محترم انجینئر صاحب جو ہے نا وہ دوبارہ آنا چاہ رہے ہیں. لے لیں ذرا ان کی تھوڑی سی نا ٹیون کر دیں. آپ میوٹ کریں. تو یار عثمان پھر تو ہی کریں تے، لیکن کوئی ٹائم طے کر لیں. ہیں جی ٹھیک ہو گیا، تو کریں گا ڈیبیٹ لیکن ٹائم طے کر کے، ٹھیک ہے. جی تے ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ, ਗੱਲ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ. چلو جی ڈیبیٹ شروع کرو، پارٹی شروع کرو. مبشر بھائی میرا آپ سے سوال ہے، آپ مائک آن کریں. نہیں وہ استاد محترم نے اجازت دے دی ہے، اگر کوئی بھائی ہوسٹ یا کوئی اور بھائی موڈریٹ کر سکتا ہے تو دونوں کو، ہمارے دونوں کا ٹائم جو ہے نا وہ طے کر دے، کتنے منٹ. ایک منٹ ابھی فی الحال رکھ لیں. ٹھیک. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ عثمان علی. عثمان علی نام لکھا ہوا ہے میرا. تو مرزا انجینئر کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، تو بات یہ ہے کہ آپ نے کرنی ہے ڈیبیٹ ہم سے، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی مرزا انجینئر کی ویڈیو، اس کی بات آپ کے لیے ہوگی حجت. تو ابھی جیسے مفتی صاحب نے پوچھا ہے سوال ہے، تو آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، میں بھی سوال کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. میرا جسٹ ایک چھوٹا سا سوال ٹھیک ہے، جو میرے دماغ میں کھٹکتا ہے، میں وہ اس سوال کا جواب لینا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے. اس سے زیادہ نہ میں ڈیبیٹ کے قابل ہوں، ٹھیک ہے، میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے کام سے بھی لیٹ ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو آپ اپنا سوال کریں گے تو پھر ہمارا سوال کون لے گا اور اس کا جواب کون دے گا؟ یہ بھی تو تھوڑی بات کریں. آپ ایسا کریں، ٹائم طے کر لیں، آپ اپنا سوال بھی کر لیں ساتھ ہے، تاکہ میں اپنے ٹائم میں یار ٹائم مینج کر دیتا ہوں. کیا نام ہے آپ کا؟ ماجد نام بتایا تھا آپ نے. آپ مجھے نیچا دکھا سکتے ہیں ماجد صاحب، آپ ماجد نام بتایا ہے آپ نے؟ واجد علی نام ہے میرا. اچھا ماجد صاحب، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا، 1 منٹ پورا آپ کے پاس ہے، جو مرضی بول.
ٹھیک ہے، میرا سوال یہ ہے سر، میں پہلے پاکستان میں تھا، ابھی میں سعودی عربیہ میں ہوں، ٹھیک ہے. میرا سوال جسٹ سمپل چھوٹا سا یہ ہے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ادھر دربار ہو جتنی بھی درباریں ہیں، ٹھیک ہے، میں جاتا بھی رہا ہوں، گھر والوں کے ساتھ ابو کے ساتھ جاتا رہا ہوں درباروں پہ، یہ میلے وغیرہ ہوتے تھے، تو وہاں پہ میں ایک چیز کامن چیز ایک دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ جس بھی دربار پہ جاتا ہوں نا، وہاں پہ گیٹ جو ہے نا موسٹلی، میں 100% نہیں کہتا لیکن 70% کہ درباروں کے جو دروازے ہیں نا وہ چھوٹے لگے ہوتے ہیں، کہ مطلب وہاں سے جھک کے اندر جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. میرے دماغ میں یہ بات کھٹتی ہے کہ مسجد کا دروازہ جو ہے نا وہ ہائٹ پہ لگا ہوتا ہے، مطلب بڑا لگا ہوتا ہے، سارے سیدھا سینا کان کے اندر چلے جاتے ہیں، لیکن درباروں پہ جو یہ دروازے لگے ہیں یہ چھوٹے کیوں لگے ہوتے ہیں؟ اس کی کوئی مین وجہ، اس کی کوئی خاص وجہ، وہ آپ مجھے بتا دیں. جی ٹھیک ہو گیا. ویسے اپنی ٹرن میں 1 منٹ میرے پاس، میں استاد محترم پھر کروں بات اب؟ جی کریے. جی ٹھیک ہو گیا. دیکھیں یہ تو مفتی صاحب بیٹھے ہیں، اس کا یہ جواب دیں گے کہ درباروں میں آپ نے کوئی دیکھا ہے؟ میں نے تو کوئی ایسا نہیں دیکھا. ہم بھی گئے ہیں درباروں پہ، کوئی ایسا کوئی شاذ و نادر کوئی ہو کہ چھت ان کی چھوٹی ہوگی تو اس کی وجہ سے دروازہ چھوٹا رکھا ہوگا، انٹرنس چھوٹے رکھی ہوگی. تو میرا بھی سوال ساتھ ہی اب کھڑا کر لیں کہ وہ مرزا انجینئر نے جو ہے وہ اپنی جو چھوٹی سی اکیڈمی ہے اس کے اندر جو اس نے رکھا ہوا ہے دروازہ، اور اس کو 36 قسم کے تالے کیوں لگائے ہوئے ہیں؟ ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں. وہ 36 قسم کے تالے لگا کے کیا اندر وہ اورل سیکس کرتے ہیں؟ کیونکہ مرزا انجینئر کی ویڈیو ہے، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں اپنے ٹائم میں. تو مرزا انجینئر کی اس ویڈیو کا بھی اپنی ٹرن میں جواب دیجیے گا کہ پھر اندر آپ کیا کرتے ہیں وہاں پہ، یہ سنیے گا. ٹھیک ہے، آپ میری بات سنیں سر. جس کی مختلف شکلیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر رائج ہے. اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی، ہر چیز انجینئرنگ ہوئے گی. کہ نبی عقیدہ آخرت ٹائم ختم ہو گیا ہے عثمان، ٹائم ختم. جی ماجد بھائی، اورل سر سیکس میری کا بات سوال سنیں. کیا انہوں نے، اس کا جواب دے دیں. میں نے آپ سے بولا کہ میں دین کے مسئلے پہ خدا کی قسم نہ آپ لوگوں کو نیچا دکھانے ہوں، نہ میں کوئی مفتی عالم ہوں. جسٹ میرا بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے یار، میں آپ کو بڑا بھائی سمجھ کے سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ نیچے بھی جتنے بندے کمنٹ کر رہے ہیں یا اوپر بھی جتنے بیٹھے ہیں، آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ 100 میں سے 70%، ٹھیک ہے، درباروں کے دروازے چھوٹے لگے ہوتے ہیں. میرے دماغ میں بس یہی ایک بات کھٹتی ہے. باقی میں نے نہ آپ لوگوں سے نماز سیکھنی ہے، نہ کوئی کسی اور بات پہ بحث کرنی ہی نہیں ہے. میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دیکھ لیں میری تربیت، میں نے آپ لوگوں کو کسی کو گالی نہیں دی، ٹھیک ہے. میں کب سے سن رہا ہوں لوگ آتے ہیں گالیاں دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، مطلب چلو وہ ٹھیک ہے، وہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ان کی تربیت ایسی ہوگی الحمدللہ. میری ایسی تربیت نہیں ہے. لیکن بھائی سمجھ کے ایک بات کر رہا ہوں، آپ سوال کے اوپر سوال رکھ رہے ہیں، مطلب آپ نہیں دے سکتے جواب، ہمیں کہیں جی نہیں دے سکتا. خدا کی قسم میں براڈ بند کروں گا، چلا جاؤں گا. مبشر بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جب سے ٹک ٹاک انسٹال کی ہوئی ہے فرسٹ ٹائم کسی کی براڈ پہ جا کے ایک سوال کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. کسی کی براڈ کبھی کھولی نہیں ہے یار، ہمارے پاس اتنا ٹائم ختم ہوا جی. اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ ماجد صاحب نے کوئی جواب اورل سیکس کا نہیں دیا. عثمان بھائی آپ کا ٹائم شروع ہوا. جی دیکھیں ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ ولی کے دربار پہ جب ان کے توسل سے وسیلت سے دعا کی جاتی ہے اس سے کوئی سوال وغیرہ پوچھتے ہیں، ان کو دروازے کی کیوں پڑی ہے؟ اس لیے میں نے ان سے نا یہ پوچھا ہے کہ دروازے کی کیوں آپ لوگوں کو کیوں پڑ گئی ہے؟ آپ کو نہیں آپ نہ بولیں، ابھی ٹائم دوبارہ شروع ہوا بھائی آپ کا. عثمان یہ بیچ میں بول پڑے ہیں، دوبارہ ٹائم شروع ہوا. جی 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 جزاک اللہ. دیکھیں ان کو دروازے کی کیوں پڑی ہے؟ یہاں آپ دروازے کے بارے میں کیوں سوچ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات کوئی اس میں کوئی دین کا نہ لینا نہ دینا، نہ کوئی آپ سے کوئی سوال ہونا ہے قبر میں اس حوالے سے. تو آپ اس کا جواب دیں کہ جو دین کے حوالے سے جواب ہونا ہے کہ دین میں آپ کے لیے حلال قرار دیا گیا ہے اورل سیکس. میں ٹائم جو ہے نا وہ دوبارہ اپنے ٹائم میں وہ چلا دیتا ہوں ویڈیو، یہ سن لیں. یہ مرزا جینیا نے آپ کے لیے اورل سیکس حلال کیا ہوا، یہ دروازہ 36 تالے لگا کے یہ کام کرتے ہیں آپ. سیکس ڈسپلن کیا ہے اس کا بھی ایک نمونہ آپ سن لیں. اورل سیکس کا ڈسکس کیا ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک برائی ہے جو معاشرے میں آ رہی ہے. اس میں ایک کہیں پر تھوڑا سا اگر آپ اسکیپ روٹ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ یہ کہ کنڈوم کے استعمال کے ساتھ ہو، ورنہ تو ڈائریکٹلی ظاہر ہے اس طرح کا عمل کرنا تو اس کو کون ذی شعور شخص جو ہے وہ حلال کہے گا. بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی. جی میں ٹائم ان کو تھوڑا زیادہ لیا ہے، ان کو زیادہ ٹائم دے دیں لیکن میرے بالکل ٹائم زیادہ نہیں لیا، پورا 1 منٹ آپ نے لیا ہے. اور انجینئر ماجد صاحب جواب دیں گے
کہ کونڈوم پہن کے اورل سیکس کرنا جائز ہے بھائیوں؟ تو جی جواب دیں جی مائک اوپن کریں، آپ کا ٹائم شروع ہو گیا۔ مبشر بھائی، عثمان بھائی، میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ایک التماس کر رہا ہوں کہ یار آپ سوال کے اوپر مجھ سے سوال کر رہے ہیں، میں آپ کو نیچا دکھانے نہیں آیا بھائی، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر آپ کے پاس اس کا جواب ہے آپ دیں، نہیں ہے تو خدا کی قسم میں چلا جاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں آپ سے ڈیبیٹ کرنے نہیں آیا یار بھائی، آپ پتہ نہیں کیوں بار بار ویڈیو چلا دیتے ہیں۔ دیکھیں میری بات سنیں، جس طرح آپ ویڈیو چلا رہے ہیں ہو سکتا ہے اس طرح میری گیلری میں بھی ہزاروں پڑی ہوں، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ اسلام کے بس ٹاپک پہ بحث نہیں کرنی چاہیے، تو میں نہیں کر رہا یار، میں بھائی سمجھ کے آپ کو اپنا بڑا بھائی سمجھ کے آپ سے جسٹ ایک سوال کر رہا ہوں کہ میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ 100%، میں کہہ رہا ہوں 70%، ٹھیک ہے؟ اور نیچے کچھ بھائی کمنٹ کر رہے ہیں کہ درباروں کے چھت ڈاؤن ہوتے ہیں تو دروازے اس لیے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے بھائی، بڑے جن کے چھت ہیں ان کے بھی دروازے چھوٹے ہوتے ہیں، بس مجھے ایک یہ بات بتاتے کہ وہ دروازے کوئی نہ کوئی تو لاجک ہوگی نا بھائی، کوئی نہ کوئی تو سینس ہوگی نا کہ دروازہ چھوٹا لگانے کی، اگر لگا ہونا چاہیے۔ ٹائم پورا ہو گیا جی، ٹائم پورا ہو گیا جی، ٹائم پورا ہو گیا جی، ٹائم مائک میوٹ جی بھائی۔ اچھا جی تو کوئی نہیں، انجینئر صاحب کے فالوور اور اسٹوڈنٹ جناب ماجد صاحب نے بالکل بھی کوئی جواب نہیں دیا، صرف اتنا انہوں نے کہا ہے کہ 70% اور 50% کونڈم پہن سکتے ہیں۔ جی عثمان بھائی ٹائم شروع ہوا۔ جی مرغی جی کے سوال ایسے ہی ہیں نا، وہ عجیب سے سوال ہیں کہ بھائی وہ کوئی آٹا گوند رہی ہے تو آٹا گوند لی تو ہلدی کیوں ہوئے تو انج کیوں ہوئے تو اونج کیوں ہوئے، بھائی ان چیزوں کا کوئی لینا دینا ہے؟ کوئی دین کی بات سے کوئی لینا دینا ہے؟ یہ جو دین جہلمیت کا میں نے آپ سے سوال پوچھا، یہ آپ کھا پی گئے خرد بردی کر گئے ہیں، یہ کیوں کھا پی رہے ہیں آپ؟ یہ ہمارا بھی سوال ہے بھائی، یہاں تو بتاؤ نا کہ اس دروازے سے کوئی آپ کو تکلیف ہے، کوئی لینا دینا ہے، کوئی بات ہے، کوئی ایسا اشکال ہے، آپ کا کوئی اعتراض ہے، بتاؤ۔ دوسری بات کہ ایسی باتوں کا علم نہ بھی ہو تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اس سے فرق ضرور پڑے گا کہ یہ جو آپ نے شریعت کے اندر ایک اورل سیکس کو حلال کیا ہے تو وہاں پہ 36 کنڈیاں لگا کے میں نے پوچھا تھا آپ یہ کام کرتے ہو، یا 36 کنڈیاں لگا کے آپ یہ والا کام کرتے ہو؟ کہتا ہے اس توحید کے بعد مجھے سیکس ڈسپلن پسند ہے، وہ 36 کنڈیاں تالے لگا کے وہاں پہ سیکس ڈسپلن سکھاتے ہو۔ اور مرزا انجینئر نے کہا تھا کہ میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں سیکس ڈسپلن۔ ٹائم ختم ہوا جی، ٹائم ختم، ٹائم ٹو ٹائم چلیں جی۔ انجینئر ماجد صاحب یہ آپ سے سوال بار بار کر رہے ہیں کہ کونڈم پہن کے جو ہے نا اورل سیکس کر سکتے ہیں، تو ایک میرا بھی سوال بیچ میں ایڈ کر لیں کہ کونڈم پہن کے جب اورل سیکس کریں گے تو پھر بعد میں منہ دھونا ہے کہ نہیں دھونا؟ جی جناب آپ کا ٹائم شروع ہوا۔ اچھا بھائی میری بات سنیں، میں سمجھ گیا کہ آپ لوگوں کے پاس میرے سوال کا جواب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا کہ میں نہ اس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور نہ اس بندے کو سنتا ہوں جو میری تربیت جو ہے وہ بری کرے، ٹھیک ہے؟ تو جہاں تک یہ دروازے کی بات رہی نا، میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ دروازے جسٹ اس لیے لگائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی غرور اور تکبر میں بندہ چھاتی چوڑی کر کے دربار کے اندر نہ آئے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے جو پیر فقیر جن کی درباریں بنی ہوئی ہیں، یہ ان لوگوں کی سوچنے کی مینٹیلٹی ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے گھر میں جاؤ، اللہ کو یہ چیز پسند ہے کہ مطلب جو بھی ہے جس طرح بھی ہے سیدھا اندر آ جائے۔ اور جہاں تک چھوٹے دروازے کی بات رہی نا، میں ثابت کر سکتا ہوں کہ فرعون کے دربار میں ایسا چھوٹا دروازہ لگا تھا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا منواتا تھا، اسے پسند نہیں تھا کہ کوئی بندہ چھاتی چوڑی کر کے سینہ تان کے اس کے دربار میں آئے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو خدا منواتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس نے اپنے دربار کا دروازہ جو تھا ٹائم ختم ہوا جی، ٹائم ختم ہوا جی، ٹائم آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ تو انجینئر مرزا جونیئر جیلمی صاحب کے فالوور ہونہار طالب علم جناب انجینئر ماجد صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا کہ اورل سیکس کرنے کے بعد منہ کو دھوئیں کہ نہیں۔ بھائی دیکھ لیں، میرا ٹائم دوبارہ شروع ہوا، تو بالکل بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اور میں ابھی چلتا ہوں عثمان بھائی کی طرف۔ عثمان بھائی آپ کیا فرماتے ہیں کہ جناب کونڈم پہن کے جو یہ کہہ رہے ہیں اورل سیکس جائز ہے بھائیو؟ جی فرمائیے جی۔ ٹائم شروع۔ ان کے دین کے اندر جو میری اسکرین بڑی کیجیے گا ذرا، اسکرین بڑی کر دیں پھر میرا ٹائم لگائیں، اسکرین بڑی کر دیں میری۔ جی ہاں جی، وہ مرزائی جی یہ دیکھیں جی، یہ کہہ رہے تھے، انہوں نے ویسے کوئی دلیل نہیں دی، اپنی طرف سے کیا سرائی کیا، یہ دیکھیں۔ یہ میں بتا رہا تھا کہ اکیڈمی کے اندر 36 تالے لگا کے یہ اندر کیسے یہ کونڈم چڑھا کے یہ اورل سیکس سکھاتے ہیں، یہ سنیں۔ اس طرح ان کو مر جانا
जाना चाहिए, मैं कहता हूँ इनको तौहीद की हवा भी नहीं लगी हुई है। ये शैतान के एजेंट है दुनिया में, ये तागूत है, चुमवाते रहते हैं हाथ, चुमवाते रहते हैं, ठीक है, चुमवाते रहते हैं हाथ, घंटों बैठे रहते हैं, नजराने बटोरते रहते हैं, उनके सामने ऊंचा हाथ बांध के लोग खड़े होते हैं जिस तरह खुदा के सामने हुए हैं, इस तरह इनको मर जाना चाहिए। मैं कहता हूँ जमीन फटाइए, अंदर चले जाए, इनको तौहीद की हवा भी नहीं लगी हुई। ये शैतान के एजेंट है दुनिया में, ये तागूत है। ये है जी असल वो तौहीद तागूत। इन्होंने तो एक क्या सा है कि टाइम खत्म हुआ, टाइम खत्म हुआ, टाइमो टाइम चलना है, टाइमो टाइम। तो वो हम आते हैं जी, मेरा सवाल रह गया था ये नहीं टाइमो टाइम भाई ना, इंज नहीं। अच्छा जी, हम आते हैं इंसाफ के साथ चलते हैं ना, बिल्कुल इंसाफ। अब आते हैं इंजीनियर मिर्जा जूनियर जेलमी साहब के होनहार स्टूडेंट शागिर्द और मुकल्लिद और फॉलोवर जनाब इंजीनियर माजिद साहब की तरफ, और ये हमें बताएंगे कि इंजीनियर साहब तागूत भी बन गए, शैतान भी बन गए, और शैतान के एजेंट भी बन गए, और यहूद हनूद के एजेंट भी बन गए, और खुद हाथ थमवा के। जी क्या रोशनी डालते हैं जी आप इसके ऊपर, आपका टाइम शुरू हुआ। भाई देखें, मैंने जो आपसे सवाल किया था ना, मैंने उस टॉपिक पे बात करनी थी, लेकिन एक्सीडेंटली और हर लिहाज से वो सवाल का जवाब मुझे खुद आप लोगों को देना पड़ा, क्योंकि आप लोगों का इतना इल्म नहीं था कि मेरे सवाल का आप जवाब दे सकते। ठीक है, आप जस्ट एक टॉपिक पकड़ के बैठे हो, तो वो आप लोगों के साथ बहस करने से बेहतर है कि मैं फ़ोन खोल के देख लूँ। ठीक है, हो सकता है वो आपसे ज़्यादा गोरे हम लोगों को सिखा दो, लेकिन आप लोगों के बस की बात नहीं है। ठीक है, मैं कोई गाली गलौज नहीं करता। एंड पे यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, अगर मेरी कोई बात भाइयों को बुरी लगी तो मैं दिल से माजरत करता हूँ। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ भाई। मैं भाग के नहीं जा रहा, सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अल्लाह हाफिज़ भाई। मर्ज़ी भाग गया, चले मर्ज़ी जी, मेरा टाइम भाग इसलिए रहा हूँ, मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मुबशर साहब, मैंने सवाल आपसे किया था, आपने उस्मान भाई पे फेंक दिया। नहीं भाई, टाइम दोबारा शुरू हुआ, उस्मान भाई बीच में बोले हैं, दोबारा बोलें जी, बोले 1 मिनट फिर। यार उस्मान भाई के नाम के साथ मुफ्ती नहीं, आपके साथ मुफ्ती है। मुबशर भाई, आपके नाम के साथ मुफ्ती लिखा हुआ है। देखें, मेरे नाम के साथ मैंने खुद, हालांकि मैंने शौकिया लिखा हुआ है इंजीनियर, लेकिन देखें मैंने इंजीनियर की तरह सवाल भी आपसे किया, आपके नाम के साथ मुफ्ती लिखा है। आप मुफ्ती बन के मुझे सवाल का जवाब दे दें। उस्मान भाई, आपका माइक भी म्यूट है। एम कुरैशी भाई, मैं तोहमत नहीं लगा रहा, मैंने आपको बताया कि ऐसा दरवाज़ा फिरौन के दरबार में लगा है। आप थोड़ी रिसर्च करें, माशाल्लाह पढ़े लिखे भाई लग रहे हैं मुझे, जाके किताब खोलें। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि दरवाजे क्यों लगाए जाते हैं यहाँ पे। जी टाइम खत्म हुआ, जी टाइम खत्म हुआ, पूरा 1 मिनट आपको दोबारा हमने दिया है। तो ये थे जनाब मोहतरम इंजीनियर मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब के होनहार फॉलोवर मुकल्लिद स्टूडेंट और उम्मती जनाब इंजीनियर माजिद साहब, जिन्होंने बिल्कुल भी हमें नहीं बताया कि ओरल सेक्स जब कॉन्डम पहन के किया जाए, चूपा लगाया जाए, तो वो फिर बाद में मुंह भी साफ करना है कि नहीं धोना है। टाइम दोबारा शुरू हुआ, टाइम दोबारा शुरू हुआ मेरा ना, बोलना नहीं, मेरा दोबारा टाइम शुरू करो भाई, टाइम दोबारा शुरू। तो ये थे जनाब इंजीनियर मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब के होनहार शागिर्द फॉलोवर उम्मती जनाब इंजीनियर माजिद साहब, जो कि बहुत बड़े जनाब उम्मती हैं इनके, और इन्होंने बिल्कुल भी कोई बताया ही नहीं है, तरीका ही नहीं बताया। तो ये शरीयत जहलमियत इन्होंने सिखानी थी, समझानी थी, क्योंकि मुसलमानों का तो इन्होंने डैमेज हैज़बिन डन कर दिया है। फ़िरक़ों की दुकानें और तमाम मज़ाहब की दुकानें की हैं बंद। अब मुसलमान बचे हैं ये, या तो मिर्ज़ा जूनियर जेलमी साहब या इनके फॉलोवर, बस 2 बंदे मुसलमान हैं, बकाया तो सारे गए बाढ़ में। तो कोई जवाब नहीं दिया जी, कोई शरीयत नहीं सिखाई इन्होंने, बिल्कुल नहीं सिखाई। तो उस्मान भाई आपका टाइम शुरू हुआ। भाई मैं मुझे 1 मिनट दे, 1 मिनट दे भाई, मैं तोहमत नहीं लगा रहा किसी पे। नहीं आपने नहीं बोलना, नहीं टाइम दोबारा शुरू भाई, टाइम दोबारा शुरू, बोलना नहीं, विच बोली दा नहीं हुंदा, चुप करके टाइमो टाइम टुरी दा हुंदा है नाल नाल। तो जब तक उस्मान भाई नहीं आते तो फिर मैं ही अर्ज कर देता हूँ कि गुजारिश ये है कि मैंने जो सवाल किया था कि मर्दियों की भी मैं जब जन्नत में पहुंचेंगी और अल्लाह से जाके सवाल करेंगी, अल्लाह ताला
मुझे एक 100 शोहर दे दे, ते एक 100 शोहर मिल गया उधरों, ते इधर दुनिया वाला एक शोहर, ते 101 शोहर हो गए। हुण सारियां दा गेम पाउण ते दिल करदा है पिया, ਉਹ गेम किंज पाउणगे? आया ਉਹ ਵਾਰੀ ਲਾਣਗੇ, ਲੈਨ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ? ਉਹ ਕੀ ਸੀਨ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਜਵਾਬ ਹੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ, क्योंकि तौहीद के बाद सबसे बेहतरीन चीज़ सेक्स है, तो बेहतरीन चीज़ सिखाओ तो सही ना सानू सही तरह। इंज ना करो भाई, इंज ना करो, धांधली करते हो पे, वेख लो फिर, इंज ना करो। ते वो जेड़े अकैडमी दे टुकड़े खादे जे ना, वो लाल करो ना। मेरा टाइम दोबारा शुरू करो भाई, टाइम दोबारा शुरू करो ना भाई, ना टाइम दोबारा शुरू ना भाई, ना ਇਹ धांधली नहीं चलनी, धांधली बिल्कुल चलनी नहीं। ते नाले मैं डिबेट मैं नहीं कर रहा, उस्मान कर रहे हैं। उस्ताद मोहतरम असूली तौर पे ना इनका हमसे सवाल करना बनता ही नहीं, क्योंकि इन्होंने हमारी दुकानें तो बंद कर दी हैं। दुकानें तो बिल्कुल हमारी दुकानें तो बंद हो गई। आप लोगों से सवाल किया, मुझे जवाब नहीं मिला। ना यार ऐसे बोलना नहीं बच्चे, उस्मान नाल मुनाजरा उस्मान नाल ही है, मुनाजरा उस्मान नाल ही करना है ना, इंज नहीं। अजे चुप करके सुनीदा हुंदा है। हां जी चुप, बिल्कुल बोलना नहीं। अजे मुनाजरा उन्हां नाल ही तुसां करना सी, ते आपस च यार बेली गप शप लाने हैं। मुफ्ती साहब मेरा आपसे सवाल क्यों भाई भी नहीं यार, ना यार तुसी इंज ना करो, मुफ्ती आपने लगाया हुआ है ना यार। मेरे सवाल का जवाब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद मोहतरम। मैं मुफ्ती लाया है ना, साडी ते दुकान बंद हो गई है, मैं कहना ते पिया यार भाई। तो करो ना दुकान बंद ही हो गई, हुण दुकान किंज खुलनी है दसो? या ते साडी दुकान खोलो, जे दुकान बंद कीती सारी उंज खोलो ना, पहले ए शटर चुको दुकान दा। सवाल का जवाब नहीं दे सकता, मैं चला जाता हूं। दुकान जेडी बंद कीती जो पहले दुकान ते खोलो ना। मैंने आपके साथ आपसे पूछा था कि आपका जो टॉपिक चल रहा है मैं उसके मुतालिक बात नहीं करना चाहता। छोटा सा सवाल है, गल है वे, मैं चुप करके निकल जाऊंगा। तुसी साडे कोल कोई भी सवाल करन दे मजाज नहीं, किसी भी किस्म दे। ओदी वजह मरदी है वे, कैसे इस्लाम की खिदमत कर रहे हैं, कैसी तबलीग कर रहे हैं? भाई असी ओहो साडा तो इस्लाम ही नहीं। पिछले 1 घंटे से सेक्स का टॉपिक लेके देखो ए तरीका सही नहीं। देखो इंज लड़ाई हो जाएगी, इंज लड़ाई हो जाएगी, लड़न झगड़न वाले काम शुरू कर दिते ने तुसां। लगदा है हुण तुसी दौड़न दी तैयारी च हो, बिल्कुल, ते तां वास्ते लड़ाई शुरू कर दे हो पे। मैं कहना बड़ा तुहाडी डिबेट हो रही है उस्मान नाल, तुसी चुप करके बस सुनो, माइक म्यूट करके सुनो। ते सैफे चिश्तियाई आए ने भाई, अस्सलाम वालेकुम। यार भाई जितने भी बैठे, वालेकुम अस्सलाम उस्ताद मोहतरम, कैसे हैं आप? मेरे सवाल का अल्लाह का शुक्र है, बड़ा शोर आ रहा है भाई, बड़ा शोर आ रहा है। सर मैंने बोला मैंने काम पे जाना है। मुफ्ती साहब मेरे छोटा सा सवाल है यार, तुसी देखो कितनी देर ते जान करदे हो पे, जांदे भी कोनी जे पे। तो मेरे सवाल का जवाब मिलेगा मुफ्ती साहब तो मैं जाऊंगा ना। सवाल दा जवाब ते तुहानू उदन मिलना है जिद्दन दुकान खुलनी है, दुकानां ते बंद पईयां ने, कित्थों जवाब लब्बे भाई? चले फिर मैं ही चला जाता हूँ। मतलब या तो ऐसा करिए इंजीनियर माजिद साहब, आप इकरार कर ले कि ये जनरल पलीतन याहू साहब ने झूठ बोला है, कोई किसी की दुकान नहीं बंद हुई। आप इकरार कर ले कि कज़ाब झूठा आदमी है, तो सवाल करें, आपको जवाब दे देते, कोई मसला नहीं। और यार मैंने आपसे सवाल अपने आप के अपनी रूह को तस्कीन देने के लिए मेरे दिमाग में एक बात खटती है, मैंने उसके मुताल्लिक आपसे सवाल किया है। मैं कहता हूँ गोली मारो यार, इंजीनियर को साइड पे रख दो, फिरका साइड पे रख दो, हर चीज़ साइड पे रख दो यार। कैसे यार, मैं आप लोगों को इतनी रिस्पेक्ट से बुला रहा हूँ, बड़ा भाई क्या की मारो दोबारा जरा एक मिनट इंजीनियर दी की मारो यार, वो टॉपिक नहीं है हमारा। दोबारा रिपीट अगेन समझ मैं क्या देता हूँ, मैंने कहा गोली मार दे, साइड पे करें उनको। नहीं आपने कुछ कहा, ने गोली की जगह कुछ और बोला था, आपने कहा आप मिर्जे की मारो, कुछ बोला है आपने बीच में, खा बे गए हैं आप। मुबशर भाई देखे ये सारी ना इंज नहीं बशर भाई करके तुसी जड़ा है, तुसी अपना टॉपिक ना चेंज करो, टॉपिक ना चेंज करो। नहीं मिर्जे की क्या मारो, नहीं कुछ आपने बोला है कुछ। बशर भाई मेरी बात सुने यार, अभी बोले है ना इन्होंने कुछ। बड़ा भाई कह रहा हूँ, नहीं बोला है देखे ये इन्होंने क्या 80 बंदा बैठा हमें सुन रहा है यार, हो सकता है किसी की माँ बहन। क्या बोला है इन्होंने हबीब साहब? हाँ जी, इन्होंने कहा जी मिर्जे की बुंड मारो, मेरे सवाल का जवाब दो। अच्छा ते ए भी काम शुरू कीते जे नाल इंजीनियर साहब?
ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ साड़ियाँ दुकाना बंद करके ये काम कितना दा शुरू कर दिया अभी इन्होंने उस्ताद मोहतरम अभी इन्होंने कहा तो है कि मैं आप लोगों को सुनने सारे भाइयों मेरे आप सारे भाइयों मेरे मैं देख लो यार 84 इन्होंने अभी ये कहा है कि मैं आप लोगों को सुनने के बजाय तो जाके गंदी वेबसाइट जाके देख लेता हूँ वो मेरे लिए बेहतर है अभी इन्होंने कहा है। अच्छा ये इंजीनियर साहब ने बोला है इंजीनियर साहब मैं तो जो नहीं की थी इन्होंने अभी कहा है कि मैं आपको सुनने के बजाय जाके पोन देख लूँ मेरे लिए ज्यादा बेहतर है अभी इन्होंने बल्ले हाँ वो तो ईद के बाद तो बेहतरीन चीज सेक्स है ना वो तो इनका दीन मजहब है वो तो ये तो हर मर्जी ये काम करता है बड़े बड़े शौक से करते हैं ये बल्कि और बल्कि शायद जब 10 साल की इनकी बाजी हो जाती है उसको भी साथ बिठा लेते हैं कि तू जरा इधर फिल्म देख के सेक्स सीख जा यार भाई कुछ अच्छा या ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾਈ ਜਾਇਆ ਜੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਲੋ ਸੁਣੋ creators looking for an egg ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਖੌਫ ਕਰਾਈ ਜਾਇਓ ਆਪ ਹੀ ਖੌਫ ਨਾ ਕਰਿਓ ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣੋ ਜ਼ਰਾ मैं शायद कोई ऐसी बातें करूं जो भी मजहबी लोगों को बुरी नहीं लगे। देखिए इस्लाम ये जो कहते हैं ना जी सेक्स की एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, सर इस्लाम में तो सेक्स की एजुकेशन है। मैं ये नहीं कहता कि आप 2 या 3 साल के बच्चे को सेक्स सिखाना शुरू कर दें। हमारे 14-15 साल के बच्चे क्या सेक्स के मामले में एजुकेटेड होते हैं? यानी बच्चियों को तो 10 साल की हो जाए तो फौरन एजुकेट कर। होता क्या है, ये बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से मिर्जा साहब इंजीनियर साहब की पढ़ जाते ने दोबारा रिपीट अगेन मुबशिर भाई क्या पढ़ जाते हैं इंजीनियर साहब जरा दोबारा बताइएगा। मुबशिर भाई सिर्फ बच्चियां स्कूलों में पढ़ती हैं, स्कूल में पीरियड्स आ जाते हैं तो बच्ची तो परेशान हो जाती है ना, वो पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से, 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 कपड़े भर जाते हैं खून से। समझ नहीं आई किदे नाल कपड़े भर जांदे ने, दोबारा जरा। कपड़े भर जाते हैं खून से, पूरे कपड़े भर जाते हैं खून से, कपड़े भर जाते हैं खून से, कपड़े भर जाते हैं खून से। नहीं खून से कपड़े भर जाते हैं, कितने भर जाते हैं स्कूले? मेरी ईगो हर्ट नहीं होगी। अच्छा एक मिनट भाई, एक मिनट चुप करके सुनीदा होता है। बच्चों के बैग के अंदर आप रुमाल या इस तरीके से, अब तो लेटेस्ट मामलात हो गए, पैड्स आ गए, और उनके पैड्स उनके 1 या 2 पैड रख के बच्चियों के, और उनको पहले ही एजुकेट कर दें कि अगर ऐसा मामला हो तो परेशान नहीं होना। सारी बच्ची परेशान नहीं होना, परेशान तो होना ही नहीं, क्योंकि पर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा जब पहली दफा हुआ था तो क्या गुजरी थी इंजीनियर साहब, दसो ना जरा यार, ये तो पहली दफा हुआ था तो क्या गुजरी थी, कोई रोशनी डालें इसके ऊपर। आए उस्मान आ गए वापस के? नहीं तेरा इंतजार है भाई। मुबशिर भाई मेरी बात सुने। नहीं और पहली दफा जब हुआ था तो क्या गुजरी थी? 86 बंदे यहाँ पे बैठे यार, पहली दफा जब हुआ था तो गुजरी क्या हम लोग ऐसी बहस करें कि यहाँ से कहानी सुनाए, जरा कहानी सुनाए, हमें कहानी सुनाए, जब पहली दफा हुआ था क्या गुजरी थी? मतलब जो मैंने सवाल किया आपने उसका यार मतलब पहली दफा जब हुआ था तो क्या गुजरी थी? यार भाई मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था पहली दफा जब हुआ था तो गुजरी क्या थी? आप लोग मेरे बड़े भाई हो, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो मैं आपसे फिर के साथ पहली दफा हुआ तो कितना तमाशा लगता है, पर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा शाम नहीं होना। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ तो कितना तमाशा लगा था। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ तो कितना तमाशा लगा था। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ तो कितना तमाशा लगा था। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ तो कितना तमाशा लगा था। चारी बच्चियों के ऊपर क्या गुजरती है कि जब उनके साथ पहली दफा हुआ तो कितना तमाशा लगा था। और फिर वो अपनी सहेलियों का भी सुनाएंगी, फलानी के साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, और ऐसा तमाशा खड़ा हो जाता है। और ओहो तमाशा ही इकट्ठे हो जाते ने ते ओ नेड़े इकट्ठे होके मरजैन दे कोल ओ मरजैन दी कहानियां सुनते ने, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਫਲਾਂ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਮਰਜ਼ਈ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫਲਾਂ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾਈ ਮਰਜ਼ਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਰਜ਼ੈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੈਕਸ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? लड़के भी इसी तरीके से
लो जी, अब ना मिर्जा जूनियर जेलमी साहब की जो बड़ी लड़की है रज्जो, तो वो अपनी रज्जो लड़की के बारे में वो बता रहे हैं, ये जनाब कुछ सिखा रहे हैं आपको, सुनिएगा जनाब। नेड़े नेड़े हो जो मर जाइयो। मेरी माशाल्लाह बड़ी बच्ची ऑलमोस्ट 12 साल 13 साल की, तो मेरी वाइफ ने उसको इस हवाले से एजुकेट, क्योंकि वो मतलब वो आके उधर मुझसे तो नहीं डिस्कस करती, उसने अपनी मामा से डिस्कस किया कि आज इस तरह एक बच्ची के साथ हो गया, आज इसके साथ हो गया, तो वो बच्ची पूरे दिन रोती रहती है, उनको तो पता ही नहीं कि यही मामलात हो गए। तो वो फिर उसने उसको एजुकेट सारा कुछ और सारा जी एजुकेट किया उसने, फिर सारा सिखाया सेक्स क्या होता है, वो पहली दफ़ा जब होता है तो फिर क्या होता है। तो परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना। तो ये जो अपनी सवाल मेरे ज़हन में है जी उस्ताद, मतलब एक सवाल ज़हन में है कि देखिए कि वो जो उसकी बेटी थी, उसकी जो बेटी थी उसके अंदर कितनी गैरत और हया थी कि उसने अपने बाप के साथ डिस्कस नहीं किया गैरत की वजह से। लेकिन वो बाप कितना बगैरत है कि सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और कई मिलियन फॉलोवर जो हैं वो जनाब ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और उनको बता रहा है कि मेरी जो बच्ची है ना वो जवान हो गई है, और वो जो है ना वो अब देख रज्जो जवान हो गई, रज्जो जवान हो गई है। हाँ, रज्जो जवान, रज्जो परेशान नहीं होना, परेशान तो होना ही नहीं। रज्जो सेक्स ऐसे करते हैं, रज्जो। अच्छा जी, लो जी, अब इंजीनियर साहब अपनी कुड़ी रज्जो की अंडरवेयर का तरीका बताने लगे हैं। नेड़े नेड़े हो जाए, नेड़े नेड़े हो जाए भाई, पैरां दी मिट्टी नहीं छड़नी। फिर बिसो ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें, बिसो ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज, बिसो ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें, फिर बिसो ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें, फिर बिसो ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें, फिर बिसो ने भी कहा जी आप मतलब अंडरवेयर यूज करें। सेक्स ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਗੈਰਤ ਆਜ਼ਮ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਰੱਜੋ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਿਓ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬਗੈਰਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਗੈਰਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰਤ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਹੈ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜੇਲਮੀ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਉਂਝ ਦੀ ਕੋਈ ਲੱਭੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿ ਤੇਰੀ ਨਾ YouTube ਚੈਨਲ ਬੜਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਇਹ ਬਸ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਰੱਜੋ ਦੀ ਸ਼ਲਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇ, ਰੱਜੋ ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਵੇਖੀ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇ ਇਸਲਾਮ ਔਰ ਸੈਕਸ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਊ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਬਿਲੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊ ਵੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। वीडियो का टाइटल क्या है? रज्जो की शलवार? नहीं, रज्जो की शलवार का जिक्र होवे इस्लाम और सैक्स ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੂਨੀਅਰ ਜਲਮੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਸੈਕਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ट्रेनिंग आ जाएगी, सेक्स आ जाएगा। सुनिया जी जरा, इसकी तालीम इस एज के बाद तो देनी है ना आपने। मैंने एक प्लान बनाया हुआ है, अब अल्लाह करे वो कभी दिन है। मैंने एक प्लान किया था कि मैं सिर्फ 10 साल से जो 15 साल के बच्चे हैं ना, उन बच्चों के लिए एक नशिस्त रिकॉर्ड करा, ताकि जो हमारे बच्चे अब जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख, ये शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख, जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख, जवान हो रहे हैं, खुद शर्मा रहे हैं ना, तो वो वीडियो दिखा दें कि बेटा ये देख। अब वीडियो बहानी है भाई। अच्छा इंजीनियर साहब, मुझे चलते चलते याद आया, वो पोर्नोग्राफी की जो वीडियो बनानी थी, फिल्म बनानी थी, वो तैयार हुई है कि नहीं अभी तक? जी इंजीनियर माजिद साहब, माजिद निसार वाजिद, डब्ल्यू से मेरा नाम है, बहुत से वो सेक्स फिल्म
सेक्स फिल्म जो तैयार करनी थी वो तैयार हो गई है कि नहीं, एकेडमी से रिलीज हुई है कि नहीं? मर्जी ये बातें कर लें, गाली गलौज कर लें। मैं ये नहीं गाली की नहीं बात कर रहा, मैंने कहा ये अभी आपने सुना कि आपके बाबा जी कह रहे थे कि मैं एक सेक्स फिल्म रिलीज कर रहा हूँ, तो मैंने पूछना था वो रिलीज हुई है कि नहीं जी। उस्मान आया कि नहीं यार, मर जा, कितने टुर गए हैं? मैं आ गया मर जा तू, मनाजरा दूरा छड़ के टुर गए। अगू गल टोर ले, अगू गल टोर ले, टाइम तेरा ही हो, टाइम तेरा ही उस्मान। तालीम लेने नहीं आए भाई, नहीं एक मिनट भाई उस्मान का, चलो जी टाइम शुरू है, 10 मिनट से बोल रहे हैं, मैं टाइम शुरू हो गया, टाइम शुरू उस्मान भाई का। आपका हाथ मुझे अच्छा मर गई जी। देखिए मेरा टाइम शुरू हो रहा है। इन्होंने मुझसे सवाल किया था कि अक्सर मज़ारात पे दरवाजे छोटे होते हैं, बहुत पुराने मज़ारात, ऐसे ही आप ना ओल्ड वीडियोस, ओल्ड हाउस देखेंगे ना सऊदी अरेबिया में भी, इसी तरह मसाजिद के, तो दरवाजे ये ओल्ड हाउसेस में ऐसे ही होते थे और वहाँ के वैसे बने, वहीं की छतें वहीं का वैसे भी रहने दिया। इन्होंने कहा चूँकि वो फिरौन के दरबारों के छोटे दरवाजे होते थे तो इसलिए माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। इसी तरह बहुत सी मसाजिद के ओल्ड मसाजिद हैं, जाके देखें उनके भी, और ओल्ड हाउस जितने भी हैं उनके भी छोटे होते हैं। लेकिन मर्जियों इन इस सवाल से जो तूने इस्तदलाल किया है वो तो बातिल है। हजूर अलैहिस्सलाम दा रोज़े अतहर दा जेड़ा दरवाजा है ना एंट्री वाला, वो भी छोटा है। जी जी, तो अब इसका मतलब हुआ कि इसी बात पे रहे, साबित करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मर्जी आपकी बारी थी ना भाई, ना टाइम दोबारा शुरू होया ना भाई, टाइम दोबारा शुरू विच बोल पे ने, टाइम दोबारा नहीं, आप भाई चुप टाइम शुरू दोबारा। बिल्कुल बहुत सी ओल्ड जो मसाजिद है, अभी ओरल सेक्स जेड़ा कोंडम पा के हो जे सवाल दा जवाब रहिंदा जे, सारा जोर ते तीना ना देई जाओ जी। अभी उस्ताद मोहतरम ने भी बता दिया कि मस्जिद नबवी, कब्र नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हुआ दरवाजा भी छोटा है, तो इसका क्या मतलब वो फिरौन का दरबार है? माज़अल्लाह, ये तो मरज़ियत है। टाइम दोबारा शुरू हो गया जी, टाइम दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि मरज़ई एक वो मलऊन कौम है कि जिन्होंने ये बात किया कि माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह नबी पैगंबर शाही कोई नहीं, अपना पेशाब नहीं धो सकते। जब इनकी माओ की तहकीक ये है कि ऐसे उन्होंने मज़े लेती ने जम दिया, खुद मिर्जा इंजीनियर ने कहा कि ये उनकी माएँ शाही कोई नहीं है, तो ये बातें यही करेंगे। हालांकि मैंने आगे से सवाल किया था कि भाई एकेडमी के दरवाज़ा छोटा क्यों है, वहाँ पे 36 ताले लगा के तुम वहाँ पे ओरल सेक्स वाली तालीम क्यों नहीं बताते हमें, वहाँ पे जो दी जा रही है। मैंने हवाला दिया था, मिर्जा इंजीनियर कह रहा है कि कॉन्डम लगा के चूपा लगाओ वो हलाल है, हालांकि 7 साल पहले उसने बगैर कॉन्डम के लोगों को ये चूपे की तरगीब दी। फिर मैंने गामदी को उसको हाथ चूमते हुए झुकते हुए दिखाया, बताओ कि ये उसका फिरौन का दरबार है। फिर वो अपने हाथ लोगों से चुमवा रहा है, बल्कि यहाँ तक के सजदे करवा रहा है। कहो कि यहाँ पे वो तागूत है, ये मिर्जा इंजीनियर शैतान है, मलऊन है, फिर उनका दरबार खोला हुआ है। लेकिन मरज़ई मरता मर जाएगा, इनकी माओ ने जो इनको तरबियत दी। टाइम खत्म हुआ भाई, टाइम खत्म जी इंजीनियर साहब। मुबशर भाई मैं बोल लूँ? उस्मान भाई मुफ्ती मुबशर साहब ने अभी कहा है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रोज़ा मुबारक है उसका दरवाज़ा भी छोटा है, तो काइंडली आप इनसे ये रिक्वेस्ट करें कि मुझे साबित कर दें कैसे कि वो दरवाज़ा छोटा लगा हुआ है। मैं सऊदी अरेबिया में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा एक कर चुका हूँ, दूसरे की नीयत की हुई है, आप मुझे बता दें बस। हटे ना यार, इस ओरल सेक्स से हटे हैं, इस्लाम में और बहुत सारे टॉपिक है यार, उस पर क्यों नहीं आप लोग बात करते? अच्छा कैसी अजीब बात है कि कादियानी मरज़ई ना भाई, टाइम दोबारा शुरू हुआ इंजीनियर साहब का। बिल्कुल नहीं इंजीनियर साहब, आपका टाइम दोबारा शुरू हुआ। देखें आपने अभी एक बात की है ना, आप अपनी बात पे कायम रहें, मुझे साबित कर दें कि रोज़ा अक़दस हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो उधर जिधर उनकी कब्र मुबारक है उसका दरवाज़ा छोटा लगा है, ये आपने अभी बोला है, मुझे बस साबित कर दें। गोली मारे यार सारे मेरे सवालों को, अपने को ये औरत से छोड़ो, सिर्फ इसका जवाब दे दो, मुझे साबित करो। AM कुरैशी भाई दलाइल से ही बात कर रहा हूँ। अगर अंदरूनी नज़र नहीं आता सुल्तान भाई, अगर अंदरूनी नज़र नहीं आता, बाहर से किसी की नज़र नहीं आता, तो आपने कहाँ पे देख लिया है?
यार भाई सारे खामोश हो गए हो। मुबशर भाई जी अब टाइम खत्म हुआ जी। उस्मान मेरा टाइम ही खत्म हो जाता है। उस्मान शुरू करें। जब सवाल का जवाब सबने सुना इस मरज़ई मेरा टाइम खत्म हो जाता है, आपका मेरा टाइम दोबारा जवाब दो ना मुबशर इस भाई। मरज़ई चूपे वाली सरकार ने सबसे पहले ये सवाल करके बहतान लगाया, क्योंकि दरवाजे इसलिए छोटे होते हैं क्योंकि वो तुम्हारे खुदा हैं माज़अल्लाह। इसने ये जो है ना वो बहतान लगाया, और फिर ये बहतान लगा के क्योंकि वो तुम्हारे खुदा हैं तो फिर ओन जो था उसके भी दरबार के दरवाजे छोटे होते हैं। उस्मान भाई टाइम दोबारा बोल पड़े। अच्छा एक मिनट उस्मान, मैं तुम्हारे टाइम के अंदर से ही इनको दिखा देता हूँ। ये ले मेरी तस्वीर बड़ी करो भाई। ये देखें जी, रोज़ा रसूल के अंदर ये वो ये जो था क्या नाम है इसका, चचनिया का वो जा रहा है। ये देख ले वो सर के बराबर है दरवाजा, छोटा दरवाजा, ठीक है। चले ये बस दिखाना था। टाइम दोबारा शुरू भाई, टाइम दोबारा शुरू। चुप कर दे। टाइम दोबारा झुक के नहीं जाना पड़ता। टाइम दोबारा शुरू भाई, टाइम दोबारा शुरू। इनकी माओ ने इनको सिर्फ ओरल सेक्स सिखाया है। अभी तो पूछना ये था कि जब तुम्हें ये तालीम दी है कि ओरल सेक्स करो, तो जब वो तुम्हारा ओरल सेक्स करेगी मरज़इयो, तुम्हारी सिस्टर करेगी, तुम्हारे बहनोई का या तुम्हारी टॉपिक चेंज हो गया है। अभी टॉपिक चेंज हो गया। टाइम दोबारा शुरू भाई। एक मिनट भाई। हाँ, तो जब तुम्हारी सिस्टर वो तुम्हारे बहनोई का करेगी ओरल सेक्स कॉन्डम चढ़ा के, तो या तुम अपनी बीवी को लगवाओगे चूपा, तो तब भी वो झुकेगी। तो इसलिए तुम वो कॉन्डम चढ़ाते हो ताकि तुम वो मिनी खुदा हो, क्योंकि तुम्हारा तो अकीदा है कि तुम मिनी खुदा हो, तो इसलिए तुम कॉन्डम चढ़ा के उसको झुकाते हो। और ये भी बताना है कि फिर उसका जो फल बूटे तुम्हें कितने के मिलने हैं वो चूपे लगवाने के, ये भी तुमने अपनी टर्न में बताना है कि ये जो तुमने ओरल सेक्स वाली तालीम दी है अपने लोगों को, तुम लोगों ने, तो उसके लिए तो झुकना पड़ेगा। तो झुकने के लिए फिर वो कितने फजीलतें उसको मिलेंगी, कितने जन्नत में तुम्हारे फल बूटे मिनी खुदा मरज़इयो तुम्हारे मिलेंगे, फल बूटे कितने मिलेंगे, वो भी तुमने बताना है अपनी टर्न में। और जब ये तुम कहते हो कि झुकना शिरक है, तो वो फिर कैसे लगवाएगी ये ओरल सेक्स जो है वो आपका कैसे करेगी? लेट के करेगी? अगर लेट के करेगी तो क्या माथा लगाना है उसने कि नहीं लगाना ओरल सेक्स करते हुए? अगर लगाया तो फिर सजदे की पोज में आ जाओगे। तो इसका भी अब तुमने अपनी टर्न में जवाब देना है। मैं अपना टाइम इसको देता हूँ मुफ्ती साहब, ये इसे के मेरे सवालों का भी जवाब दो जी। ठीक है, इनका टाइम शुरू करने से पहले मैं जो है वो ये दिखा दूं ज़रा, तस्वीर बड़ी करना भाई। ये एक दरबार गोलड़ा शरीफ का मैं दिखाने लगा हूँ। ये कह रहे थे कि ये दरवाजे छोटे होते हैं। ये देख लें, ये गोलड़ा शरीफ का दरबार है और इसके दरवाजे चेक करिएगा। ये देखें, ये तो कद्दे इंसान से 2 गुना है, 2 गुना बड़े दरवाजे हैं, 2 गुना, यानी कम से कम समझ ले 10 फुट 11 फुट का दरवाजा है ऊंचा। ये देख रहे हैं, देख रहे हैं आप लोग। चलें भाई, अब तुम्हारा टाइम शुरू हुआ। और ओरल सेक्स कॉन्डम पहन के जायज है कि नहीं, उसका जवाब दो। टाइम इसके लिए झुकना पड़ेगा कि फिर वो सजा बनेगा। तो ये मिनी बोर्ड है, इसलिए ये वाला। उस्मान भाई अभी मेरा टाइम शुरू हो गया है, तो काइंडली मुझे बोलने दें यार। पहली बात ये कि मैंने स्टार्टिंग में सवाल में आपको ये नहीं बोला था कि 100%, मैंने बोला था 100 में से 70% दरबारों के दरवाजे छोटे होते हैं। 74% लोग यहाँ पे 74 लोग सुन रहे हैं, ठीक है। उन सब को पता है कि हर का नहीं होता, कुछ दरबारें ऐसी हैं जिनके दरवाजे छोटे होते हैं। और दूसरा, उस्मान भाई आपने जो अभी मिसालें दी हैं, ठीक है, औरल सेक्स और फलाम, मैं तो नाउज़ुबिल्लाह ऐसे अल्फाज ज़ुबान से नहीं निकालना चाहता, ठीक है, कि मैं रोज़ा अक़दस की बात कर रहा था कि आप लोगों ने बोला वहाँ दरवाज़ा छोटा लगा, तो मैंने आपको बोला साबित करो। तो वो आप साबित करने की बजाय खुदा अल्लाह माफ़ करेगा, आपने देखो कैसी मुझे दलील दी है यार। मान जाओ, आप लोगों के पास इल्म नहीं है। इंजीनियर ठीक कहता है कि तुम लोग इल्मी किताबी नहीं हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम इल्मी किताबी हैं, हम पढ़ लिख के आगे आ रहे हैं, ठीक है। तुम लोगों की तरह चबले मार के आगे नहीं आ रहे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग पढ़ के रिसर्च करके आगे आ रहे हैं। यहाँ पे लाइक व्यू या पैसे कमाने के लिए ब्रोडों पर बैठ के लोगों को ओरल सेक्स का तरीका नहीं बता रहे, ठीक है। अगर बार बार आप यही बात कहते हो कि ओरल सेक्स ठीक है, मुझे डिफिनेशन बताओ AI जनरेटेड की,
AI کی ڈیفینیشن بتاؤ. ٹھیک ہے, میں آپ کی مجھے ایک ویڈیو ٹائم میں ہوں ویکھیا ٹائم 1.5 منٹ لے لیا تساں اور نہیں ہوں 1.5 منٹ عثمان نو ہی ملے گا. چپ ہو یار بھائی, چپ ہو بھائی, کوئی نہیں بولے گا اجے ٹائم نہیں شروع, کسی کا بھی کوئی ٹائم نہیں شروع ہویا. 1.5 منٹ عثمان تانوں ملے گا اور اس 1.5 منٹ تو پہلے چونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار چپ کر جا, ٹائم چپ کر جا یار, نہیں یار غلط گل ہے بھائی, غلط گل ہے. چپ 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 آپ لوگ صرف اورل سیکس سکھا بولو, ذرا تھوڑا چپ سا لئی دا ایک مہذب معاشرے سے نہیں ہو یار. ویکھ لو پھر تسی انہاں لڑائی والے کام کردے ہو پے. عزت شرف راس نہیں ہے تانوں, عزت شرف راس نہیں. کنی مہذب گفتگو ہو رہی ہے, اسی ٹائم لایا ہن ویکھو تسی بولدے ہو پے وچ. نہیں غلط گل ہے نا. تسی تے آندے اسی پڑھ لکھ کے جڑے ہاں اسی مرزئی بنے ہاں تے اے جے پڑھائی لکھائی تہاڈی ہے. مجھے میرا بات کا یار چپ کر کے ٹائم نہیں, اپنے ٹائم تے جو مرضی کہیو نا یار, اپنے ٹائم تے جو مرضی کہیو, کیا کر کر کے سنی دا ہوندا ہے. کیوں یار غلط گل ہے یار. انجینئر ویکھ لو پھر ہجے ہن تک تے تسی ساڈے یار بن گئے سو, لیکن ہن جڑا نا کام خراب ہوندا ہے پیا لگدا ہے یار. کام زیادہ سے اے نا بالکل ہوا ٹائٹ ہو گئی جے بندے دی, اے نکلن والا جی, اے نسن دی بالکل تیاری چ. عثمان سانبھ لے ہن اگوں, ہن ٹائم کو نہیں عثمان, ہن ٹائم کو نہیں. جب آپ نے مسجد نبوی کی وہ تصویر بھی دکھا دی, ویسے بھی میں نے حوالہ دے دیا کہ بہت سے ایسے اولڈ ہاؤس ہیں ان کے بھی دروازے چھوٹے ہیں, اور جیسے اور بھی بہت سی ٹائٹ ہو گئی, نکل گیا ہے. اچھا بات یہ اس نے کہا کہ ہم تو اورل سیکس کی تعلیم نہیں دیتے. کہتا ہے میں منہ میں وہ بات لانا نہیں چاہتا. اس نے قبول کیا کہ میں مرزا انجینئر کی ہر ویڈیو کو مانتا ہوں. میں نے یہ ویڈیو سنائی اپنی ٹرن میں. اچھا یار منڈیو بہو دھیان نال, تے میں تھوڑی دیر تک آ رہا ہاں تے تھلے دھیان رکھیو. میں جدوں آواں نا تے چک لیا دی کال. ٹھیک ہے جی مرزئی آ گیا جی. اب دیکھیں میں نے اس کو پیش کی ویڈیو, اور ویڈیو میں نے اس سے یہ سوال پوچھا. اس نے بہتان لگایا کہ دروازے اس لیے چھوٹے رکھے جاتے ہیں کیونکہ تم ان کو خدا مانتے ہو. اس کا ہم نے انکار کیا. اس نے کوئی دلیل نہیں دی. دلیل یہ دی کیونکہ جھکے جاتے ہیں اس لیے یہ خدا ہے. تو میں نے اس کو اس کے گھر سے ویڈیو دکھائی کہ مرزا انجینئر کے ایک ہی ان کا دربار ہے اکیڈمی, وہاں پہ مرزائی جو ہے جاتے ہیں اور مرزا انجینئر کو جا کے جھک کے سجدے کرتے ہیں, وہاں پہ اس کے ہاتھ چومتے ہیں. یہاں تک اس نے کہا کہ ذرا سا بھی جھکنا غیر خدا کے لیے وہ سجدہ ہے, اور خود وہاں پہ جھک رہے ہیں, اپنے ہاتھوں کو چموا رہا ہے. کہتا ہے یہ شیطان ہے جو اپنے ہاتھوں کو چمواتے ہیں اور خود چموا رہا ہے. میں نے اس کو ویڈیو دکھائی لائیو. اس نے کوئی کلام نہیں کیا. لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ ہم اورل سیکس کی تعلیم نہیں دیتے, جبکہ وہ اکیڈمی میں بیٹھ کے لاکھوں لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم دے رہا ہے, جس کی میں نے ویڈیو ابھی سنائی آپ کو. یہ دوبارہ آپ سن لیں. آپ سن لیں. اورل سیکس کا ایشو ڈسکس کیا ہے. ظاہر ہے یہ بھی ایک برائی ہے جو معاشرے میں آ رہی ہے. اس میں ایک کہیں پر تھوڑا سا اگر آپ اسکیپ روٹ کسی کو دے سکتے ہیں تو وہ یہ کہ کنڈوم کے استعمال کے ساتھ ہو, ورنہ تو ڈائریکٹلی ظاہر ہے اس طرح کا عمل کرنا تو اس کو کون ذی شعور شخص جو ہے وہ حلال کہے گا. بھائیو اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اورل سیکس کا نام بھی میں لینا پسند نہیں کرتا, یہ ہماری تعلیم نہیں ہے. اور وہ اورل سیکس کا نام لے کر کہہ رہا ہے کہ اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں آئی, اور کہہ رہا ہے کہ ہاں ڈائریکٹلی نہیں, ہاں اورل سیکس چڑھا کے آپ مزہ لے سکتے ہیں, اورل سیکس کا آپ مزہ لے سکتے ہیں, یہ حلال ہے. اورل سیکس کونڈم کے ساتھ. اب میں نے اس سے سوال پوچھا تھا کہ بھئی جب اورل سیکس کرو گے تو اس کے لیے بھی جھکنا پڑے گا, تو بتاؤ یہ جو پوز وہ تمہاری بیوی یا تمہاری بہن یہ پوز بنائے گی تو پھر وہ شرک تو نہیں ہوگا؟ کیا تم اپنے آپ کو خدا بناتے ہو پھر اس وقت؟ حالانکہ ان کا کلیم ہے خدا ہونے کا, یہ منی خدا کا عقیدہ رکھتے ہیں. بس کچھ بات سے وہ بگڑ گیا اور بھاگ گیا. جی عثمان بھائی یہ مرزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, علی رضا مرزئی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اوپر, یہ دیکھیں. ہاں جی علی رضا مرزئی صاحب. عثمان بھائی صرف منی خدا نہیں, ساتھ میں اللہ کا شریک بھی کہے نا. السلام علیکم. جی علی رضا مرزئی صاحب جی بولیں. جی آپ کیا بولوں جی جناب؟ بولیں جی. مرزا انجینئر جو بولا جو ہے اورل سیکس جو ہے وہ کونڈم لگا کے ہو سکتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں ذرا. یار ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے, مجھے اس کا ریفرنس نہیں. جی نوید بھائی یا عثمان بھائی یا پھر یاسر بھائی. چلے نوید بھائی آئیں, نوید بھائی کو ٹائم دیں. اگر غلط ہے یا ٹھیک ہے یا صحیح ہے یا نہیں صحیح, وہ دلیل جو ہے وہ حلال ہونے کی دعویٰ ان کا ہے.
تو ڈیمیج ہیز بین تو ڈن ہو چکا ہوا ہے تو سوال ہم سے پوچھ رہے ہیں. تو اگر ان کے پاس دلیل ہے حلال ہونے کی تو ٹھیک ہے, یہ دلیل دے دیں. جی نوید بھائی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کریں بات, یا تو آصف بھائی کریں بات, دوسرے بھائی بھی ٹائم دیں نا. تو ایسے کرتے ہیں ٹائم ٹو ٹائم گفتگو کر لیتے ہیں. جی نوید بھائی. عثمان بھائی کریں, پہلے تو ان سے پوچھیں یہ بھائی علی بھائی آپ انجینئر کے فالوور ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں؟ بھائی میں سب کو سنتا ہوں اور جو میری سوچ عقل مانتی ہے نا باتیں میں وہ مانتا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ جائز ہے, آپ کہتے ہو ناجائز ہے, آپ مجھے کوئی دونوں ریفرنس بتا دو کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے, میں اس کو مان لیتا ہوں دیکھ کے پڑھ کے. نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں, آپ تو پہلے ہی بیک فٹ پہ چلے کہ آپ مرزا کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, فالوور نہیں ہیں. بھائی میں نے آپ کو وہی بات بتائی ہے کہ میں اس کا آپ میں سب کو سنتا ہوں, میں سارے چلیں آپ جان چھڑا رہے, کوئی آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں ابھی نہیں شادی شدہ. بس جب شادی ہوگی پھر اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.